Good evening, everyone, and welcome for this great session. And hoping to have a great learning experience. We'll be sharing certain ideas. We have our expert so-called team. अगर आप उसको मानते हैं तो Dr. Sanjeev Verma is here. Dr. R.P. Singh sir is here from the core team. IMM. We have Rohit here, Vishal sir, Pankaj Chuk sir, O.P. Gupta sir. Who will be starting with the session, and of course in while the session is going on, there are certain requests. I can just make a request to all of you. Whenever anything comes to your mind, of course we all have certain apprehensions. So in case if you have any submission, so kindly write down in the chat box, or you can raise your hand. And since we have also created the feedback form, so when the session will be about to over, we will share that feedback form, and in that feedback form you can only write down your query if they are unanswered even in this session, because we are not the CBSE experts as such here, right? So we just taken this as a volunteer task to help and learn from each other. Okay, so shall we begin, Rohit? Sanjeev sir, RP Singh sir? Yes sir, please sir. Hanji. Okay, so I am starting with I'm sharing the screen and request OP Gupta sir along with Rahul Sofas sir and Pankaj Chuk sir to take over to start with this. And meanwhile, if there are any query, any suggestions, we'll be taking that. But one humble request to all of you. As already mentioned, we are not the CBSE experts, so there may be many apprehensions. So please सीबीएसई को क्रिटिसाइज करना कि ऐसा कर दिया है या ये होना चाहिए था, सो प्लीज अगर आप ऐसा चीज ना बोलें, अवॉइड करें, बिकॉज वी हैव already given with this syllabus. We have no option, no choice is being asked, or no feedback is being asked by CBSE. So as a teacher, now it is our responsibility to get this syllabus implemented in our classrooms. So that simply means when we left with no option, अब आप हंसकर एक्सेप्ट करें या थोड़ा उदास होकर, सो उसमें हमारे पास और कोई लिबर्टी चॉइस रहती नहीं है. तो आई थिंक द बेटर ऑप्शन इज लेट्स कीप स्माइलिंग, एंजॉय करें हंसते हुए, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन में लाएं. अब वो इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कहाँ इश्यूज आ सकते हैं, number of you already must have gone through this syllabus. The PDF files being shared officially by CBSE, and few of them other members have also shared their based on their experiences have come up with another presentation. So right, so that's a mixture of all which we are going to now share with you. Okay. Amit sir, start करें? Yeah, over to OP Gupta sir and others. Okay. Hello everyone, Namaskar. Let's understand reduced math syllabus. सर एक्चुअली मैं क्योंकि मोबाइल से यूज कर रहा हूँ सर, तो वीडियो के लिए फिर मेरा वो रूफ दिखेगा, छत दिखेगा, तो दैट्स व्हाई मैंने उसको स्टॉप किया था. ओके ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू. ठीक है, थैंक यू. So here are the major objectives that we are going to discuss in this particular session. We are going to discuss about the reduced syllabus of math for class 12th and for class 11th. First for class 12th and then for class 11th. And then it is about assisting practicing teacher of mathematics in understanding the changes made in the math syllabus due to COVID-19, of course. And then after we will be also going through how to understand what we need to teach the students and what not to teach in the current session. Because there are many confusion कि हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है इस समय, और बहुत सारे पीडीएफ, जैसा कि अमित सर ने बताया, बहुत सारे पीडीएफ शेयर किए जा रहे हैं जिसमें अलग अलग टीचर्स अपने अपने अप्रीहेंशन शेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम भी अपने कुछ जो एक्सपर्टाइज हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. So then at the end, to understand the impacts of syllabus reduction on the students of the session 2020 to 21 and how to help them avoid the side effects. जो भी यहाँ पर सीबीएसई ने रिडक्शन किया है उसके जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों के साथ, क्या होगा उनके सिलेबस में जो भी रिडक्शन हुआ है आगे फ्यूचर हायर स्टडीज में, तो हम उनके साइड इफेक्ट्स कैसे कम करने में हेल्प कर सकते हैं एज टीचर्स, एज मेंटर्स. नेक्स्ट स्लाइड सर. सो हेयर इज द कोर्स स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि आप देखें यहाँ पर, अगर ये नंबर ऑफ पीरियड्स में रिलेशन एंड फंक्शन का यहाँ पर हाईलाइट करूँ, आई थिंक थोड़ा सा जस्ट
ठीक है। सो ये एक्चुअली नंबर ऑफ पीरियड्स यहाँ पर आप देखेंगे 17 है, विच अर्लियर वाज 35 पीरियड्स। तो उसका ऑलमोस्ट मतलब अप्रोक्स आप देखें 50% रिड्यूस किया है यहाँ पर। लेकिन एज ए टीचर हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो वी डोंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज अगर मेरे स्टूडेंट्स को 10 मिनट्स में कोई चीज समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। हम डॉक्यूमेंट में जाकर रेफर नहीं करते हैं कि सीबीएसई ने उस टॉपिक के लिए, उस यूनिट के लिए कितना नंबर ऑफ पीरियड्स अलॉट किया था। अगर हमारे स्टूडेंट्स को वो चीज़ अगर 10 मिनट्स में नहीं समझ आती है तो हम उसको शायद 20 या 30 मिनट्स भी एक्सप्लेन करते हैं। सो एज सच दिस कोर्स स्ट्रक्चर आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस, यू कैन रेफर द सीबीएसई करिकुलम डॉक्यूमेंट फ्रॉम सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट। सो नेक्स्ट स्लाइड सर, because unit wise I will be discussing more and more things. Pankaj sir, in case अगर आप कुछ यहाँ पर बोलना चाहें, या राहुल सोफाट सर। सर yes, Amit sir, last slide please. Sir, last slide, yeah. Last slide. Last course structure. Yes. Yes, this one. Hello everyone. जैसा कि देखिए सीबीएसई ने हमारा सिलेबस जो है अप टू 30% रिड्यूस किया, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टोटल जो आवर्स हैं, टोटल आवर्स के अंदर उन्होंने क्या किया, या पीरियड्स कह सकते हैं हम, कि टोटल पीरियड्स में उन्होंने हमारे पास यहाँ 168, यानी पहले ये क्या थे 240, तो 240 के अकॉर्डिंग 30% रिड्यूस कर दिया 72। बट अगर हम इसको देखें कि किसी भी चैप्टर में ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर्स में उन्होंने 30% रिड्यूस किया, किसी में हो सकता है 5% रिड्यूस किया हो, किसी में 10% रिड्यूस किया हो, तो किसी में जैसे अभी ऑफिसर ने कहा कि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए हमारा जो चैप्टर 1 है इसमें टोटल 2 टॉपिक्स है, इक्विवेलेंस एंड इनवर्स। अगर हम इसमें कहें कि उन्होंने इक्विवेलेंस को रखा है एंड 1-1 एंड ऑन 2 इज आल्सो देयर, बट पहले पीरियड्स जो अलॉटेड थे दैट इज 35 and now 30, it is 17 30 okay now it is पहले 30 थे, sorry, yeah, it was 30, yes 30, now it is 17, so it means उन्होंने यहाँ पर हमारा जो almost 40% जो पीरियड्स है वो कम कर दिया। बट वही बात जो भी सर ने कही है कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी क्लास में हमारे स्टूडेंट्स का जो बैच है वो कैसा है, हो सकता है मैं किसी एक टॉपिक को समझाने में अगर मान लीजिए मैं 5 पीरियड्स लेता हूँ, कोई टीचर उसको 6 पीरियड्स मिलेगा, कोई उसको 4 पीरियड्स मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है कि हमें ये सारे का सारा कंपनसेट करना है कि कहीं पर हो सकता है कि हमें पीरियड्स, ऐसा नहीं कि हम कभी भी इस डॉक्यूमेंट्स को उठाते हैं कि हमने अलजेब्रा करना है तो 35 पीरियड्स में करना है, हो सकता है उसमें हमारे 40 पीरियड्स लगते हो। तो ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हमें इसको कंपनसेट करना है। टोटल उन्होंने टाइम पीरियड्स जो है सर आई विल इंटरप्ट, रोहित सर, यहाँ पर जो साउंड क्रिएट हो रहा है क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि शायद किसी के पीसी से ये साउंड क्रिएट हो रहा है, उन्होंने नोटिफिकेशंस ऑन की हुई हैं। कोई नहीं, आगे जब भी होगा मैं चेक करूंगा कि कहाँ से हो रहा है, देन ओनली आई कैन आइडेंटिफाई। ओके प्लीज कंटिन्यू। बस तो यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो भी टीचर्स अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी इस डॉक्यूमेंट्स को उठाकर नहीं देखता कि हमें किस यूनिट्स के लिए कितने पीरियड्स अलॉट किए गए, वो हमारी टीचिंग या स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि हम किसी भी टॉपिक के लिए कितने टाइम लेते हैं। लेकिन सीबीएसई अपने अकॉर्डिंगली उन्होंने 30 अप टू 30% रिड्यूस किया, तो उन्होंने टोटल टाइम पीरियड्स में अपना 30% रिड्यूस कर दिया। राहुल सर, आप कुछ कहना चाहें इस पर? Yeah, the only thing is that 30% syllabus reduction and corresponding 30% periods reduction in terms of time is there. And sometimes some teachers may take more time in a particular unit, and then that can be compensated in the other units. So it is just for reference, and it's not like very strictly to be followed. Right. Next slide. Yeah, next slide. So as we can say, unit-wise discussion is going on here for chapter 1, that is unit 1, chapter 1 relation and function, and then we have inverse trigo function, that is chapter 2. So the syllabus that has been deleted from chapter 1, that is relation and function, composite function, inverse of a function, binary operation, that was already deleted, I have mentioned that, and some questions, the suggested deleted question from the exercises. Of course there are examples as well that has been deleted because the corresponding concept of composite function and inverse of a function has been deleted, and accordingly binary operation. So therefore the corresponding examples are also deleted. But here this list is, as I mentioned, suggested deleted questions, and Yes. at the bottom of each and every slide I have mentioned this is only for reference. Actual deleted questions may just vary. अगर हम chapter 2 की बात करें, यानी inverse trigonometric function
फंक्शन। तो ये ग्राफ का पोर्शन एंड प्रॉपर्टीज, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रॉपर्टीज को लेकर। अ फ्यू डेज बैक एक्चुअली इन सम व्हाट्सएप मैथ्स टीचर्स ग्रुप देयर वाज ए क्वेश्चन, मतलब आप सभी लोग क्योंकि टीचर हैं तो इस चीज को आप आराम से समझ जाएंगे। डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है, x इक्वल टू a रेज टू द पावर cos इनवर्स t इन द स्क्वायर रूट एंड y इक्वल टू a रेज टू द पावर sin इनवर्स t in the square root. In case you can make a sense of this, what I'm actually going to say, and we have to find that dy upon d, actually we have to prove dy upon dx is equal to I think minus y upon x. तो अब इसको जब इसको सॉल्व करने के न्यूमरस मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें से एक सबसे छोटा मेथड क्या होता है कि हम इन दोनों को ना x into y कर दें तो फिर वो a to the power pi by 4 बन जाता है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी यूज हुआ। तो ये कैलकुलस से एक्चुअली ये टॉपिक लिंक होता है, लेकिन यहाँ जो प्रॉपर्टी हमने यूज की उसको सीबीएसई इस करंट सेशन के लिए डिलीट कर चुकी है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्राफ्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये डिलीट हो गया है। लेकिन हमें एज ए टीचर कुछ चीजें अगर इस समय हम नहीं पढ़ाते हैं, सपोज चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया और हमने प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ाया, लेकिन जब हम कैलकुलस बिगिन करेंगे तो हमें ये टॉपिक कवर अप करने पड़ेंगे। और एज ए टीचर हम हमेशा उन चीजों को कवर कराते ही हैं जो भले ही सिलेबस में नहीं है लेकिन बच्चों को जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक लास्ट सेशन 10th क्लास में मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक दैट वाज डिलीटेड, लेकिन अब मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड 11th क्लास में कोनिक सेक्शन में बच्चों को जरूरत पड़ती है और फिर 12th में इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ती है। तो क्या एज ए टीचर हम बच्चों को अभी चीज नहीं सिखाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि उसने 10th में पढ़ लिया होगा? ऑफकोर्स 10th में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो डिलीट कर दिया गया था, लेकिन हम 11th में एज ए टीचर उन चीजों को पढ़ाते हैं। तो वही काम अभी हमें यहाँ पर करना होगा कि अगर मैं इनवर्स को फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज मैं बच्चों को एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सीबीएसई इस चीज पे हमें टेस्ट नहीं करेगी, स्टूडेंट्स को पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये तो नोटिफिकेशन आ चुका है सीबीएसई ट्विटर हैंडल पे भी हमने देखा था और ग्रुप्स में शेयर हुआ है। तो अब इस पे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन बच्चे को जब डेरिवेटिव में क्वेश्चन करने होंगे या फ्यूचर के टॉपिक्स में क्वेश्चन करने होंगे तो हमें इन चीजों को उसको एलोबरेट करना पड़ेगा, बच्चों को एलोबरेट करना पड़ेगा। तो एज ए टीचर हमेशा अपने बच्चों को हम लोग वो चीजें कराते हैं जो उसके लिए जरूरी हो, भले ही वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, करिकुलम डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है सीबीएसई ने या नहीं लिखा हुआ, फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास अगर रिक्वायरमेंट है टॉपिक के लिए तो हम पढ़ाते हैं। सो दिस इज माय एप्रीहेंशन हियर। मैंने रेड बॉक्स में यही चीज यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, एज यू कैन रीड इट। स्टूडेंट्स मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न द प्रॉपर्टीज। एक्चुअली मोटिवेशन का फैक्टर यहाँ पर इसलिए क्योंकि बच्चे कई बार आजकल बच्चे भी इन्फॉर्म्ड हैं और बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड है क्योंकि हमने उन बच्चों को ना ऑनलाइन मीडियम में डाल दिया है। पहले जो बच्चा क्लासरूम में ही पढ़ता था वो शायद व्हाट्सएप उतना यूज नहीं करता था या यूट्यूब उतना यूज नहीं करता था, और या पेरेंट्स का भी होता था कि मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन होती थी कि भाई ये सब चीजें यूज नहीं करनी, मोबाइल फोन इतना मत चलाओ या फिर बिल्कुल मत चलाओ, ऐसा भी होता था। लेकिन आज के डेट में मोबाइल फोन्स पे ही क्लास चल रही है तो बच्चों के हाथ में पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो आज के डेट में बच्चे को ये कन्विंस करना कि भैया जी प्रॉपर्टीज पढ़ लो वरना इंटीग्रेशन में या डेरिवेटिव्स में आपको दिक्कत आएंगी, तो ये कन्विंस करने का काम टीचर का है। अगर हम उनको कन्विंस कर पाए तो ये हमारी ऑफ कोर्स बच्चों की जीत होगी तो हमारी भी जीत होगी। पंकज सर, एनी अदर इनपुट? यस सर, आपने तो कहा कि जो प्रॉपर्टीज का यूज है कि नेक्स्ट आगे भी नहीं काम आएगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि एक्सरसाइज 2.2, बट अगर हम एक्सरसाइज 2.1 की भी बात करें सर, एक्सरसाइज 2.1 में आप देखिए, अगर किसी स्टूडेंट से हम पूछते हैं साइन इनवर्स माइनस हाफ, वो यहाँ पर भी लिखता है कि माइनस साइन इनवर्स हाफ। अगर कोई भी स्टूडेंट ये देखेगा तो ये भी प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस हाफ लिखा हुआ है तो पाई माइनस करेगा, ये भी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टीज तो हमें उन्हें फिर भी ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं, आगे के क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो नहीं बतानी प्रॉपर्टीज फिर भी टीचर को, क्योंकि जो भी गैप रहेगा वो लर्निंग गैप डेफिनेटली वो फिल करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो गैप होते हैं हम ऑलरेडी पहले भी कब हमारी टीचिंग में हमेशा रहा है कि हम उन गैप को हमेशा फिल करते रहे, कि हम ये नहीं सोच सकते कि आज ही, जैसे मुझे एक स्टूडेंट ने कहा सर सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 रह गई है, बाकी सब डिलीट हो गया। लेकिन तब मुझे उन बच्चों को समझाना पड़ा, बेटा अगर आप मान लीजिए कोस इनवर्स माइनस 1/√2 की वैल्यूज भी फाइंड आउट करते हैं और उसमें वो कहता है कि सर मैं इसको x लेकर उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करूंगा। जैसे साइन इनवर्स माइनस हाफ को x लिया, साइन x की वैल्यू माइनस हाफ, फिर मैंने माइनस साइन π/6 लिखा, फिर मैं उसको साइन माइनस π/6। क्या मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा या डायरेक्ट मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि माइनस बाहर लो, साइन इनवर्स माइनस हाफ लिखो एंड दिस इज माइनस का π/6। तो क्या सर ये बोर्ड जो है इसको गलत तो नहीं कर देगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि प्रॉपर्टीज डिलीट होगी। बट ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में अक्सर ऐसा करते हैं कि जहां पर माइनस, सर यहाँ पर कुछ बातें ऐड कर सकते हैं बोर्ड के बारे में।
Yes. What I want to say is that one should understand that differentiation between two things is very important. The Right. board says that these particular topics may say you will not be the questions will not be asked in the examination. It is not for assessment, but clearly there is a note that teachers can give some idea to the students. So see, major reduction is in this unit relation and functions. So in relation functions, inverse and this composition is not there. So we have to teach up to this equivalence relation, one-to-one, and onto function. On to, अब yes. inverse trigonometric function में what I could understand is that जो properties पर based questions, properties are not there, so questions in calculus based on properties will not come. And moreover, but see, even if you look in your NCERT book, sine inverse, sine x is x, then the other property, sine of sine inverse theta is theta, those two properties. Yes. So there are certain Yes. questions in which you can just trigonometric simplification is required, and at the end of it, these two things are applied. These two properties are applied. Those are there because that is not given in properties. It starts. Yeah. यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा जो मैंने थोड़ा ब्रीफ में ही बताया, लेकिन पंकज सर की बात सुनकर मुझे ध्यान आया। क्या है कि एज ए टीचर ना पहले भी हम बच्चों को कन्विंस करते थे कुछ चीजों के लिए। कई बार बच्चे ना एक पर्टिकुलर मेथड हमारे पास पढ़ रहे हैं और फिर कोचिंग में एक दूसरा मेथड उसी क्वेश्चन का सीख के आ रहे हैं, तो वहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चे के माइंड में, और कई बार वो कोचिंग वाले टीचर को थोड़ा मतलब अच्छा मानता है। तो अब स्कूल टीचर्स को बड़ी समस्या आती है उस चीज को हैंडल करने में। अब यहाँ पर ना आपका काम, स्कूल टीचर्स का काम या कोचिंग टीचर्स का भी काम बढ़ गया है कि अभी आपको बच्चे को और कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा ना अब आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही पढ़ रहा है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। यूट्यूब पे दुनिया भर के यूट्यूबर्स बढ़ गए हैं, सभी मैथ के एक्टर्स बन गए हैं। चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर आपका अलजेब्रा यूनिट स्टार्ट हो गया, और इनफैक्ट यहाँ पर जो सीबीएसई ने रिडक्शन किया, वेल आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट। जैसे कि अभी यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन वी कैन सी इन द मैट्रिसेस यूनिट, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो सबसे लंबा टॉपिक होता है, तो वो बच्चों के लिए ना मतलब उसमें क्वेश्चन का लेंथ एंड कैलकुलेशंस बेसिकली इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनती हैं कि बच्चों को ना बहुत दिक्कत आती है, और कई बार टीचर्स भी रिलेक्टेंट होते हैं कि एक ही टाइप के हम कितने क्वेश्चन कराएं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक तो अगर बच्चे से हो गई तो फिर वो तो मिस्टेक कभी भी हो सकती है। तो मतलब ये यहाँ पर डिलीशन किया है, तो ये एक वेलकम डिलीशन है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर फिर उन टीचर्स की बात आती है जिन्होंने ये चैप्टर पहले पढ़ा दिया था और शायद 3 या 4 क्लासेस ली थी। तो खैर, तो अच्छा फिर डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक है, वहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट तो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे सर्टेन क्वेश्चंस हैं जहां पर वो सिंपल डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के लिए बोलते हैं। अगर हम मिसलेनियस में देखेंगे 3x3 के भी हैं, जिनको क्या हम डायरेक्टली एक्सपेंड करके बिना प्रॉपर्टीज वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आई थिंक सीबीएसई में आस्क इन द एग्जाम। राहुल सर एट द एंड में भी शायद यहाँ पर कुछ एडिशंस करें मेरे इस कमेंट में। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स। तो इस टाइप के जो एडिशंस थे पहले, वो अब डिलीशन में आ गए हैं, यानी वो अब सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। जो पहले आई थिंक 4.6 में ऐसे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी 4.6 में, तो वो डिलीट हो गए हैं। बस अभी सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, जहां एडजॉइंट इनवर्स निकाल के डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके इनवर्स निकालना, ये तो अभी भी सिलेबस में है, और उस इनवर्स को निकाल के आप फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वो अभी भी सिलेबस में है। लेकिन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, वो डिलीट हो गया है, जो कि वेलकम मूव है। वेल राहुल सर एंड पंकज सर, ओवर टू यू। See, what I want to say is in algebra, especially in matrices, the major topic which is related is, as Gupta sir has said, is this elementary row transformation. That is not there. जो बाकी है, the existence of non-zero matrix, whose product is zero matrix, is just an example. And uniqueness of inverse also generally is not done by the teachers. So yes, elementary, that's why मैंने उसको डिस्कशन में स्किप कर दिया अभी। yeah. So elementary row transformation is a major thing, not in matrices. And determinants, the major thing is like properties of determinant. Properties. And students generally used to find these properties slightly difficult and abstract. And sometimes, at times, the question of higher order difficulty used to come in the exams. So this is what I feel is these two topics are the major topics. And consistency, inconsistency is also not there. And the number of solutions of system of linear equations, that is also not there. But majority, like while teaching these two properties of determinants and this elementary row transformation, these two things are out of it. Rahul sir. Yeah.
हो सकता है मैं कि यहाँ टीचर्स के बिहाफ पर मैं अगर आप क्वेश्चन, हालांकि मैं खुद प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन, क्योंकि आज ही मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि सर रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, हम इसमें इनवर्स यूज करते हैं, हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट से। लेकिन अगर बाई चांस, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि अगर किसी स्टूडेंट ने सर इनवर्स, हालांकि कोई करेगा नहीं, बेवकूफी है उसकी अगर करता है, लेकिन अगर उस इनवर्स मेथड से फाइंड करते उसने एलिमेंट्री से इनवर्स फाइंड आउट कर दिया, तो क्या बोर्ड उसको एक्सेप्ट करेगा का, या सोचेगा कि ये सिलेबस से कट चुका है इसने क्यों यूज किया? अदरवाइज वैसे कहा जाता है कि अल्टरनेटिव अप्रोचेस जितनी भी उसको अप्रिशिएट किया जाए। हालांकि ये भी है कि वो कोई नहीं करेगा, कोई बेवकूफ होगा जो उसको यूज करेगा वहां पर एडजॉइंट की जगह। लेकिन वो उसका क्वेश्चन बड़ा वैलिड था कि अगर बाई चांस में, तो वो कहता है सर कोई एक बेवकूफी है, उसने अगर ये यूज कर दिया तो क्या बोर्ड उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको marks deduct कर देगा? Sir, I would like to answer here. I think इस case में it's all depends on the wisdom of the teachers, and the purpose of this session is this only, so that we can pass on the message to our say 100 ambassador, and then they can pass on to thousands and lakhs of all the teachers who will be checking the paper in year 2021. And as you have already mentioned, तो ये alternative approach होती है, smart approach होती है, and they are always welcomed by CBSE also. So teachers should know these methods, and at least मैं मानता हूँ book 1 जो है वो ज़्यादातर teachers इस session में पढ़ा चुके हैं। तो of course chapter 1 से 6 तक तो मैं believe करता हूँ कि शायद कुछ इतनी ज़्यादा problem इस चीज़ में नहीं आने वाली है, राइट। बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो वो टीचर्स को अगर हम कन्वे करते हैं, हम खुद कन्विंस होते हैं और आगे फर्दर ये मैसेज स्प्रेड करते हैं कि इस तरह की अप्रोचेस, एंड इसके लिए सीबीएसई से भी मुझे लगता है कि एक अगर वहाँ रिक्वेस्ट करी जाए ऑफिशियली, सो दे में कम अप विद देयर ओन सर्कुलर, जहाँ पर ये एप्रीहेंशंस जैसे आपने जो रेज किया है उसको बिल्कुल आंसर किया जाए दोबारा से, so that reinforce हो जाए कि alternative methods are always allowed, they are welcome, और इस साल भी हम उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। What I personally feel. Right, sir. And Amit sir, that one more thing is there. After the examination each year, these all these things are taken care of in the meeting of marking scheme committee. They all discuss. All we discuss, yeah. जी, so shall we proceed further? सर वन थिंग मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन अभी चेक किया, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 4 मिसलेनियस, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3, अब वो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, वहां हम प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, वैसे भी उसको हम डायरेक्टली एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ रेड बॉक्स में बॉटम में मेंशन भी किया है, क्वेश्चन ऑन डायरेक्ट एक्सपेंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट कैन बी आस्क्ड। सर नेक्स्ट स्लाइड। So now the biggest unit, maybe mostly loved by teachers and students and maybe mostly hated by also some of the students, integration इसमें आएगा और कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। लेकिन अगर हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करें, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब रूलिस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, और 5.8 जो 5.8 जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस से जस्ट पहले, वो डिलीट हो गया। तो अब ये जो मूव है यहाँ पर, इससे बच्चे को इतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, आगे फ्यूचर के जो चैप्टर्स हैं उनमें। डेरिवेटिव में यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी है, तो कंपोजिट फंक्शंस जो आपने चैप्टर 1 में स्किप किया, मतलब क्योंकि वो सिलेबस के रिडक्शन में चला गया, तो उसको अब यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस टाइप के यानी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपके सिलेबस में अभी भी है। ऐसे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन वाला पॉइंट मैं पहले रेज कर चुका हूँ यूनिट 1 का, जब मैं डिस्कशन कर रहा था इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में, कि अगर आपको इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का डेरिवेटिव सिखाना है, बिकॉज वो अभी भी सिलेबस में है, तो आपको इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी पड़ेंगी। अगर आप चैप्टर 2 में डिस्कस नहीं करेंगे तो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे बच्चे हैं अगर वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं तो चैप्टर 2 में वो प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, जब चैप्टर 5 स्टार्ट होगा आप उनको फिर ये चीजें सिखा सकते हैं, और तब तो उनको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन दूं कि साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर है 2x √1 - x², अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब बच्चे को डेरिवेटिव करने के लिए हमें उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाना पड़ेगा, जो कि चैप्टर 2 में अदरवाइज वो सीख चुका होता अगर हम पुराना पैटर्न देखें, पुराना सिलेबस देखें, तो जो कि अब रिड्यूस सिलेबस में उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चे को मोटिवेट हम कर सकते हैं कि भैया अगर यहाँ तुम चेन रूल से डेरिवेटिव करोगे ना, ये जो मैंने फंक्शन बोला, इस टाइप के और भी बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में, जिनका डेरिवेटिव अगर चेन रूल से करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आंसर भी मैच करने के चांसेस कम हो जाते हैं, और टाइम तो आपका जाएगा ही। तो यहाँ पर बच्चे को मोटिवेशन के लिए मे भी शायद हम ये चीज कह सकते हैं कि बेटा अब तो ये प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी, चलो सीख लेते हैं, और टाइम लगेगा।
जैसे कि वहाँ टाइम कम कर दिया उन्होंने, 50% टाइम कम कर दिया यूनिट 1 में रिलेशन फंक्शन प्लस इनवर्स ट्रिगो, वहाँ 50% टाइम कम कर दिया, लेकिन अब वो टाइम एक्चुअली आपको यहाँ पर कवर अप करना पड़ेगा। इन द नेक्स्ट यूनिट दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो यहाँ पर भी दो वेलकम मूव्स हैं। कुछ बच्चों को ये जो डेरिवेटिव एंड अप्रोक्सीमेशन है ये आसान लगता है, लेकिन थोड़ा सा ना बर्डन वाला टॉपिक लगता है कि छोटा सा टॉपिक है सर, पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं। रेट ऑफ चेंज अब ये भी डिलीट हो गया है, तो ये दोनों वेलकम मूव्स है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये आगे कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स अगर मुझे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर एक्सप्लेन करना है बच्चे को तो फिर रेट ऑफ चेंज होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी वन टाइम मेजर है सीबीएसई की तरफ से ड्यू टू द करंट सिचुएशन। जो डिलीटेड क्वेश्चन का लिस्ट है मैंने अपने अप्रीहेंशन पे विद द डिस्कशन ऑफ ऑल कोर मेंबर्स जो यहाँ प्रिपेयर किया है, दैट यू कैन सी इन द थर्ड कॉलम। फिर चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, यहाँ पर अगर मैं सबसे लास्ट से स्टार्ट करूँ, दैट इज लिमिट ऑफ ए सम। अगर इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक थीम अगर मुझे वो समझाना है बच्चे को, तो लिमिट ऑफ ए सम मुझे उसको समझाना चाहिए, लेकिन उस पे क्वेश्चन सब बोर्ड में नहीं आएंगे, बच्चे को एसेस मतलब इवेलुएट नहीं करेगा सीबीएसई, उसको मार्किंग नहीं करेगा, ठीक है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट शायद एज ए टीचर हमें बच्चे को सिखाना चाहिए ताकि वो डेफिनेट इंटीग्रल समझ पाए होता क्या है। या फिर ठीक है प्रॉपर्टीज आपने सिखा दी, वो मतलब ना रट्टाफिकेशन वाला काम है कि प्रॉपर्टी आपने सिखा दी, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया, बेसिक कंसेप्ट कहाँ गया तो नहीं पता। फिर फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशंस, जो यहाँ पर आपको दो फॉर्म्स विजिबल होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का। फिर एक दूसरा है px प्लस q अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक आपका स्क्वायर रूट में, ये दोनों फॉर्म्स डिलीट हो गए हैं। और फिर थर्ड कॉलम में अगेन कुछ सजेस्टेड डिलीटेड क्वेश्चंस का लिस्ट मैंने जो एक्सरसाइज वाइज प्रिपेयर किया है, दैट यू कैन सी। एंड एट द बॉटम यू कैन सी मींस जो रेड बॉक्स में टीचर्स, जो मैंने अभी बोला आप लोगों को, वो लिखा हुआ है टीचर्स में मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एटलीस्ट देखो क्या होता है कि हम जैसे कोई कंसेप्ट सिखाते हैं बच्चों को, हो सकता है 10 मिनट्स लग गए, फिर उस पर हमने उनको ना 5-6 क्वेश्चन क्लास में कराए एंड मे बी शायद 10-12 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया, सो एज सच हो सकता है कि हमारा 1 आवर का टाइम चला गया, लेकिन आज के डेट में हमें उन्हें सिर्फ कंसेप्ट सिखाना है, तो वो हमारा कुछ टाइम तो बच गया, लेकिन कंसेप्ट नहीं सिखाएंगे तो क्या एज ए टीचर हम अपने साथ या अपने बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? मैंने सबसे पहले बोला अपने साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप पैशन के साथ हैं, इसलिए आप लोग इस सेशन में भी हैं। Pankaj sir and Rahul sir, over to you. Yeah, what I feel is like in limit of the sums का जो concept है, though it is important, but it is covered in when we explain them how to find area under the curve. Yes. You are finding area of a circle or ellipse, then it matches with the actual area. So that particular concept, see, whenever I start teaching, I take a simple curve और उसमें से area निकाल के match कर देते हैं with a standard formula. So that I think is taken care of. And limit of the sums used to be slightly abstract and difficult for the students. और बाकी I think besides limit of the sums in integration, तो जो बाकी दो तो specific types of questions हैं, linear root quadratic and root quadratic. So those questions based on these will not be there. सर बस प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये जो आप ये सोच सकते हैं कि ये दोनों टाइप्स जो कम किए हैं, सिर्फ बर्डन कम करने के लिए, अदरवाइज स्टूडेंट्स ये दोनों टाइप्स को एक तरह से एक्सरसाइज 7.4 में भी करता ही है, क्योंकि सिर्फ हाँ, तो अगर हम उस फॉर्मूले की बात करें कि प्योर क्वाड्रेटिक, अगर ये ax स्क्वायर प्लस c, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि ay में भी यूज करेगा वो, ठीक है ना, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए या एलिप्स का, लेकिन सिर्फ इस दोनों के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स का बर्डन कम करने के लिए इसको कट किया गया, अदरवाइज सेम चीज वो एक्सरसाइज 7.4 में भी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, सिर्फ उसमें फॉर्मूला 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लगता है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट का लगता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये हाँ प्लीज सॉरी कंटिन्यू। हाँ, ये सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि उन बच्चों, देखिए हम स्टूडेंट्स के अगर माइंड से सोचें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत, उसको ये लगता है कि मेरी 2 एक्सरसाइज कम हो गई, मेरी 7.7 और सप्लीमेंट्री पार्ट कम हो गया। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो दोनों को कनेक्ट कर लेगा, 7.4 और 7.7 और सप्लीमेंट्री पार्ट, सेम चीज। अब जैसे यहाँ मोरओवर ग्रुप जैसे एक्सरसाइज 7.7 में क्वेश्चन 3 to 8, इसका मतलब पहले वाले जो 1-2 है वो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, मतलब प्योर क्वाड्रेटिक है वो, तो सेम चीज, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या रहा कि ये हटाने का पर्पस कि वो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा तो वो 1-2 क्वेश्चन ही बन जाता है। तो सिर्फ डिफरेंस ये रहा कि वो अब उसको जो रूट में ऊपर रूट है वो वहां पर उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना आएगा, जो काम वो 7.4 में ऑलरेडी कर चुका, सिर्फ उसके माइंड से ये होगा कि 2 एक्सरसाइज मेरी कम होगी,
तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत काम करता है कि हाँ मेरा सिलेबस कम हो गया। अदरवाइज जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होगा दोनों कनेक्ट कर लेगा दोनों चीजों को। There is a question in a chat box. I think वो हम साथ साथ आंसर करें तो बेटर रहेगा. Integrals where properties of inverse are used, can they be asked? No, no, those should not be, because when the properties of inverse is not there, all further in Related calculus questions. also, those are not there. I agree with you, Rahul sir. Same. I mean, my answer is that they will not be asked. Of course, the paper setters will go through the curriculum wisely, और उसके accordingly ही they will be framing the question paper. And I know it will become a tedious task and a challenge this year to prepare the question paper. Definitely, but I'm sure question paper they are much experienced, they know their duties very well, and accordingly जो delete हुई हैं चीजें जैसे अगर properties हैं तो of course integral में या differentiation में भी जहाँ थोड़ा inverse trigonometry will be involved, so that will not be asked. But yes, there is another question. Continuity properties of composite functions have to be done. No. Last continuity 5.1 exercise, last I think 4 to 5 questions are there. Yeah, And if you 33 use and so composition, on. Yes. 31, 32, 33. So Yes. definitely जो भी related questions है, if composition function is not there, then related questions will not be there. Anup sir will come to your question when we'll discuss this chapter 8. मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज अभी देखिए डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमारे सिलेबस में है, ठीक है, और अगर हम प्रीवियस अगर करिकुलम्स देखते हैं जो मार्च 2020 में भी रिलीज हुआ था, या इनफैक्ट लास्ट ईयर का भी हम देखें 2019 में भी, तो वहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, मतलब इसके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है। तो इस बार भी जो रिड्यूस सिलेबस आया उसमें भी कुछ मेंशन नहीं है कॉन्टिन्यूटी के बारे में। Yes, बेसिकली क्या है, जैसे आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए साइन ऑफ कॉस फंक्शन, दिस इज कंपोजिट ऑफ फंक्शन, राइट। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को कई टीचर्स, मैं तो सिंपल सी बात कहूंगा कि जरूरी नहीं कि वो इस तरह से बताते हैं बेटा दिस इज कंपोजिट फंक्शन, उसको चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देते हैं कि साइन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर वो उसको चेन रूल की तरह ट्रीट करके भी ले लेते हैं। उनके माइंड में ये नहीं आता कि हमने कंपोजिट ऑफ फंक्शन किया तो हम इसको नहीं, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस हैं वो प्योरली हमें कंपोजिट फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करने पड़ते हैं कि हम दो फंक्शंस लेंगे hx gx, उनका कंपोजिट करेंगे तो वो fx के इक्वल आएगा, तो हम समझाते हैं कि if two functions are continuous their composite function is also continuous. I would again interrupt sir, यहाँ पर दो बातें हैं सर। एज ए टीचर क्या जब मैं बच्चे को डेरिवेटिव सिखाऊंगा साइन ऑफ cos x का, तो क्या मैं उसको डायरेक्टली चेन रूल से डिफरेंशिएट, एज ए टीचर मतलब मैं चाहे आप कोई भी डायरेक्टली चेन रूल से सिखाएंगे, उसको ये वर्ड ही सुनने नहीं देंगे कि कंपोजिट फंक्शन, या क्या हम वहां पर कुछ समय निकाल कर उसको ये बात बता देंगे? और अगर ये बता देंगे कंपोजिट फंक्शन तो वही चीज फिर आती है ना कि हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हमें करनी है एज ए टीचर। देखिए मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा कि हमारा काम बढ़ गया है, लेकिन ठीक है आप मानते हैं तो हमारा काम बढ़ गया है, क्योंकि बच्चा भी सोच रहा है कि उसके लिए चीजें आसान हो गई है, कम हो गई हैं, और हम वहीं पर सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्या हुआ, एज ए टीचर हमारे लिए क्या हुआ, तो हमारे लिए काम शायद पहले से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब बच्चे को कन्विंस भी करना है हमें उसे बताना है कि कंपोजिट फंक्शन आपको सीखना पड़ेगा और सिखाना भी है। लेकिन इसी में ना मोटिवेशन का काम आता है कि आप बच्चे को कन्विंस कैसे कर रहे हैं फिर आप, क्योंकि वो तो पता है उसको, तो वो यूट्यूब पे दुनिया भर के वो वीडियोस देख के बैठा हुआ है ना। हो सकता है मैं ही बैठ के उसको यूट्यूब पे से पढ़ा रहा हूँ और मैं बोलूंगा कि कंपोजिट फंक्शन आपके सिलेबस से हट गया है। कल को मैं भी अगर ऐसा बोलता हूँ तो अब एक स्टूडेंट ने सुना, वो पंकज सर को जाकर परेशान करेगा कि नहीं वो तो दूसरे सर बोल रहे हैं कि ऐसे। तो आई मीन इससे कि हमारा काम ना अब कन्विंसिंग, कैसे हम बच्चों को लेकर आते हैं ना कन्विंसिंग में, कैसे उनको हम समझा पाते हैं कि ये पढ़ना जरूरी है। वो कंसेप्ट समझाने की बात नहीं कह रहा हूँ, वो कंसेप्ट समझना है, ये समझाना है हमें उसे। Meanwhile, suggestion मैंने देखा, हमारा काम बढ़ गया है। अनिल कथूरिया सर, गैप फिल करना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ रहा था, अनिल कथूरिया सर डीपीएस आरकेपुरम से, ही हैज रिटन वन वैलिड पॉइंट कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर डिलीटेड अगर टॉपिक से आ जाता है तो ऑफ कोर्स, अगर आ जाता है तो ऑफ कोर्स फिर वो सीबीएसई मार्किंग स्कीम कमेटी हैज टू लुक इनटू दिस एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स इन दैट केस। एंड डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये बिल्कुल अगर ऐसा हुआ कि डिलीटेड से तो मार्क्स बच्चों को मिलेंगे। सीबीएसई कभी ऐसा नहीं करेगा कि किसी भी रीजन से वो किसी पॉलिटिकल या किसी और एप्रीहेंशंस या प्रॉब्लम्स में फंसे तो दे विल अवार्ड द मार्क्स, तो इसलिए ऐसा आएगा ही नहीं। और अगर आएगा तो फिर उसका ध्यान रखा जाएगा, कंपनसेटेड। बिल्कुल डेफिनेट। अमित सर, वन पॉइंट है राहुल सर इस मामले में। यस राहुल सर, one point I want to make is like
जो 1-to-1 मैपिंग है with the questions, that is very difficult. So what a general broad framework is to be kept in mind that this particular thing is not there and questions based on this will not come. But if you take a specific each and every question, I think that I think is a difficult call. Like, so I agree that if see properties of inverse is not there, and if in an integral or differential the properties are being applied, the student should not do it, and it will not come. But then you're getting my point. So a broad framework means this is not there, or what has come out is that this syllabus is not there, it is deleted. But then this mapping with NCERT and for all these questions 1-to-1 अगर लेते हैं तो वो थोड़ा it's difficult for all of us. Absolutely true. Yeah. Next slide, sir. So again, in continuation of the unit 3rd, calculus, chapter 8, area between any two of the curves like lines, parabola, circles, ellipse, and at the bottom, actually there is one point that has been highlighted. Area under the single curve is in syllabus now. Means like we have two parabola, suppose y square equal to x and x square equal to y. अब ये यहाँ पर दो कर्व हो गए, इस टाइप का, मतलब यहाँ पर सिंगल कर्व नहीं हुआ, तो इस टाइप के अगर दो कर्व हैं, मोर देन टू कर्व्स हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स एरियाज बन जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस सीबीएसई में नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट ईयर में नहीं आएंगे, मार्च 2021 में. एंड सजेस्टेड रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ, मोर देन वन कर्व वाला नहीं आएगा. या जैसे कि मेंशन है यहाँ पे, एरिया अंडर द सिंगल कर्व इज इन सिलेबस नाउ. अच्छा, यहाँ पर एक मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे रेज करना चाहूंगा. सपोज अगर मेरे पास एक एनसीईआरटी में 8.1 में आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन. आई हैव सपोज अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड देयर इज अ लाइन x इक्वल टू 1. अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज अगर हो रहे हैं आपकी, यहाँ पर दो कर्व आ गया x इक्वल टू 1. एक्चुअली वो जो x इक्वल टू 1 वाला लाइन है, वो यहाँ पर एब्सिसा काम करते हुए ना लिमिट्स लिखने में आपकी हेल्प करेगा. जब एरिया के लिए आप लिमिट्स लिखेंगे तो यहाँ पर एरिया अंडर द सिंगल कर्व ही आ रहा है. तो इस टाइप के क्वेश्चन तो वेरी मच आपके सिलेबस में हैं. हमें बच्चों को ये बातें बतानी है. जब भी ये टॉपिक आएगा, आई डोंट थिंक अभी तक किसी ने पढ़ाया होगा, ये इस समय तक नहीं होता है. चैप्टर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पर काफी वेलकम मूव्स हैं. यस सर. सर बीच में पीछे क्वेश्चन ये पूछा गया था, वही कि इंटीग्रल्स के अंदर क्या हम एलिप्स का एरिया या सर्कल का एरिया विदाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर करवा सकते हैं? तो ऑफ कोर्स वो वैसे शायद मुझे लगता है आप आंसर दे ही चुके हैं, क्योंकि सिलेबस में ये क्लियर कर दिया गया है. फॉर्मूला जो लिया है वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसी फॉर्म का है जो हमारे सिलेबस में है. तो ऑफ कोर्स दैट काइंड ऑफ एलिप्स विल बी आस्क्ड. अदरवाइज जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो सिंपल एलिप्स लिखा हुआ है सर, वो करिकुलम में लिखा हुआ है कि सिंपल एलिप्स, सिंपल सर्कल. ऑलरेडी सिलेबस में स्टैंडर्ड इक्वेशन सिलेबस, वो रिड्यूस लेवल में अभी भी है. यस सर, ऑलरेडी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अनूप सर, वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला सर्कल ही आएगा या एलिप्स आएगा, एंड वी विल बी एबल टू आंसर दैट यूजिंग द फार्मूला जो अभी भी सिलेबस में है. स्क्वायर रूट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक्स ओनली. यस. या प्लीज सर कंटिन्यू. समझो सर. हाँ पंकज सर, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें जो सर्कल का आएगा वो डायरेक्ट, जिसमें फॉर्मूला हमारा लगेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन से आएंगे कि x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू, हमारी बुक में एक क्वेश्चन है जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल है, तो उसमें हमें क्या बनाना पड़ता है पहले से. हाँ, इस टाइप के नहीं आएगा. इस साल नहीं आएगा, कभी भी तो आ सकता है, नेक्स्ट ईयर आ सकता है. मैं 2022 वाले में आएगा. इस साल की बात कर रहे हैं सर. Area bounded between two curves is not there. We can ask, like if they ask area of the ellipse in the first quadrant, you find the area, it is a single curve. And sometimes there is a question in which two curves is there, as Gupta sir rightly said, कि एक circle है and there is a chord y equal to 2x. Then in those questions, actually we are finding area below one curve only, area below the line, and then area below the circle in some other domain. So those particular questions still we can teach our students. One more question is asked, area of triangle using integration, वो आ सकता है क्या? राहुल सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ राहुल सर. I think area of triangles में should not come because see, I don't want to be specific to questions, but then bounded तो हो ही गया ना between two curves, between two lines. Actually more than one curve हो गया वो, more than one. Actually वहाँ 3 lines आ गई ना, 3 lines आ गई. Yeah, फिर लेकिन ऐसा हो सकता है, सपोज आपको एक लाइन दे रही है, सिंपल सा कोई लाइन x/2 + y/3 = 1, और फिर बिटवीन द एक्सेस, मतलब x एंड y एक्सेस, और फिर एक लाइन, ऐसा आ सकता है राहुल सर? सर ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए इसमें तो सिंगल लाइन ही आ गया, तो इलिप्स में अगर कोई दूसरी कर्व देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन देंगे जो एक एब्सिसा का काम करेगा. बिल्कुल. अगर हम, हाँ,
अगर हम इस तरह की बात करेंगे 3 लाइंस गिवन है तो वो कुछ भी कहेंगे तो 3 कर्व्स हो जाएंगे, वो ऐसा क्वेश्चन। राहुल सर, But you can be asked to find area of a triangle in which one of the sides is the x-axis. You take Yeah, two sides and one is x-axis, then that triangle. यस 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 सर, यस सर, इस टाइप से आ सकता है कि आप ये लीजिए, इस टाइप से ये क्वेश्चन हो सकता है। like the question तो I ये asked एक you, FCC होगा। if there is a line Single x curve. upon 2 plus y upon 3, Rahul sir, if there is Yeah. a line x upon 2 plus y upon 3 equal to 1 and we need to find the area of triangle which is formed by this line using the x and y axis also in the first quadrant. तो अभी ये वाला क्वेश्चन क्योंकि सिंगल कर्व हो गया यहाँ पर और बाकी तो एक्सिस को आप यूज कर रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड और नॉट। These can be asked because only single Yes. curve is there. Just Yes. a line is there. Yeah. या तो अगर ये वाला ट्रायंगल है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर सेपरेट हमारे पास 3 डिफरेंट लाइन है जिसमें एक्सेस इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो नहीं आएगा, राइट सर? लेकिन आपने बोला कि आप स्पेसिफिक नहीं होना चाहते। No, I am saying that कोई भी see, नहीं हो सकता है नेचुरली, yeah, because that is not in our control. हमारा एक्सपीरियंस Yes, है, बस वही है yes, जिसको हम yes, शेयर yes. कर रहे हैं। और भी मेंबर्स हैं जो कुछ बाद में कहना चाहेंगे, वो चैट बॉक्स में मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इसलिए चैट बॉक्स को ओपन करके साथ साथ रीड कर रहा हूँ सो दैट वी कैन आंसर योर क्यूरी इन बिटवीन। जी please continue. Then chapter 9, that is the last topic of calculus unit 3rd, differential equation। यहाँ पर काफी वेलकम मूव्स हैं, सीबीएसई ने काफी स्पेसिफिकली चीजों को हाईलाइट कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिलीटेड, वेलकम मूव मतलब बच्चों के लिए, हमारे लिए पता नहीं कितना है, क्योंकि हम एज ए टीचर जस्टिफिकेशन क्या कर पाएंगे कि ये चीज मैं बच्चे को कैसे ना पढ़ाऊं, उसको ये ना बताऊं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है, लेकिन बस उसको ये सिखाऊं कि इसका सॉल्यूशन ऐसे होता है। बच्चा पूछेगा सर ये बना कैसे, यानी फॉर्मेशन तो हमने उसको बताया नहीं होगा। सो एज ए टीचर ये हमारे ऊपर है कि हम उसको ये बताएंगे या नहीं बताएंगे, बट सीबीएसई की तरफ से गारंटी है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ डिलीटेड पोर्शन में है वो नहीं आएंगे मार्च 21 के एग्जाम में। अच्छा, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले 2 फॉर्म मेंशन होती थी सीबीएसई करिकुलम डॉक्यूमेंट में, यानी लीनियर इन वाई एंड लीनियर इन एक्स दोनों होता था पहले, लेकिन अभी डिलीटेड वाला जो सिलेबस आया उसमें उन्होंने सिर्फ लीनियर इन वाई वाला मेंशन किया हुआ है, और इसका मतलब दूसरा लीनियर इन एक्स वाला मेंशन नहीं किया है, तो वो डिलीटेड वाले पोर्शन में काउंट हो जाएगा। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पहले वो सिर्फ ऐसा लिखते थे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, आई थिंक ऐसा लिखा होता था। तो अब सिर्फ ये चीज होती थी, मतलब वहां वो क्लियर नहीं करते थे कि एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स वाला फंक्शन या एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई वाला फंक्शन, ऐसा वो लिखते ही नहीं थे। लेकिन अभी रिड्यूस सिलेबस में इन्होंने क्लियरली ये लिख दिया है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। तो दैट मींस कि दूसरे वाला जो फॉर्म है वो अब गया बच्चों के लिए, हमें मतलब बच्चों का बर्डन कम हो गया। अगेन सजेस्टेड डिलीटेड क्वेश्चंस का लिस्ट इन द कॉलम 3rd। पंकज सर एंड राहुल सर, ओवर टू यू। Sir, what I want to say is like your formation of differential equation when general solution is given is slightly different from like you can be given the solution and see it is satisfying the differential equation. तो वो एक exercise है in the beginning. 9.2 yeah. बिल्कुल तो उसमें जनरल सॉल्यूशन वाला जो है that is not to be done. And That is not deleted, मुझे if in one line if I have to explain to teachers what you don't have to do in differential equation is just this, forming the differential equation when the general solution is given, that Right. yeah जिसमें constants होते हैं, so that is not there. बाकी तो homogeneous में only y by x type is there which they have mentioned only this year, और linear में linear in of the type dy by dx plus py is equal to q. Linear in y, linear in x is not there. इज नॉट राइट। Yeah. वो पहले हमेशा मेंशन करते थे दोनों, लीनियर इन वाई भी मेंशन करते थे, लीनियर इन एक्स भी मेंशन करते X भी करते थे। इस बार लीनियर इन एक्स वाला मेंशन नहीं किया है, सिर्फ लीनियर इन वाई वाला मेंशन किया है इन द रिड्यूस सिलेबस डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट स्लाइड सर। Well, so next unit, that is unit number 4 and the most confusing in मतलब इस समय जो रिड्यूस सिलेबस हो गया इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी यूनिट में है इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, बट विल कम ओवर दैट। फर्स्ट चैप्टर 10 दैट इज वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा। तो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ये डिलीट हो गया है, इनफैक्ट इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग एल्स। अगर 3D में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का नॉलेज अभी भी बच्चे को देना है, वो हमारे सिलेबस में अभी भी है। क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट बोथ आर स्टिल इन द सिलेबस, लेकिन इन दोनों का यूज करके जैसे हम एसटीपी को प्रॉपर डिफाइन करते हैं वो चीज अब नहीं है। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है आई थिंक 10.5 या इट इज 10.5, दैट इज नॉट नाउ इन सिलेबस। लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अब यहाँ पर जो
चीज सिलेबस से डिलीट की है सीबीएसई ने, वो क्या डिलीट किया है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये चीज तो डिलीट कर दी है। लेकिन इसके अलावा जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है, इट वाज गिवन बाय पंकज सुख सर, सो कैन सर एक्सप्लेन इट प्लीज सर। सर मैंने यही लिखा कि एक्चुअली क्या है, 3D में उन्होंने एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड लाइन एंड ए प्लेन डिलीट कर दिया। बट बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इनके ऊपर आएगा तो वो नहीं आएगा। मैं जैसे आप सभी 11th क्लास में लेते होंगे, 11th क्लास में क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद अदर लाइन हुज इक्वेशन इज गिवन। सो वी हैव टू यूज tan थीटा इक्वल्स टू m2 minus m1। तो सेम क्वेश्चन हमने यहाँ से 3D का सेलेक्ट किया था कि प्रूव दैट लाइन दिस इन दिस प्लेन, फाइंड द लाइंस इन द प्लेन through point 001 which are inclined at an angle of cos inverse 1 by root 6 with the line। It means इसमें क्वेश्चन में चाहे 6 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन यूज हो रहा है। तो लाइंस, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है, हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में नहीं आएंगे। ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी पर बेस्ड कि कोई 2 मार्क का क्वेश्चन एंगल बिटवीन टू प्लेन नहीं पूछा जाएगा, टू लाइंस, जहां पर भी एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, लाइन एंड प्लेन यूज होगा, उस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। सर जैसे कि कुछ मैं थोड़ा पीछे सर मैं एक बात ऐड करूंगा यहाँ पे, मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा यूनिट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन। अब जैसे वहां पर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वेयर दे वांट अस फर्स्ट टू प्रूव द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू एंड देन दे वांट अस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, लेकिन एनसीईआरटी में है। तो अब उसमें 1 1 एंड ऑन टू वाला पोर्शन तो वो अभी भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन वो इनवर्स वाला डिलीट हो गया। तो यानी उसी क्वेश्चन में से सेकंड वाला पोर्शन डिलीट करके सीबीएसई अभी भी आपसे 1 एंड ऑन टू पूछ सकती है। जैसे कि अभी जो 3D वाले क्वेश्चन में, अभी मैं आपको फिर वापस यही ले आता हूँ, तो 3D वाला ये जो क्वेश्चन अभी यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसमें तो पहला पोर्शन है वो है, वो अभी भी है, लेकिन दूसरे वाला जो आगे जहां पर एंगल वाली बात होगी, एंगल बिटवीन लाइंस की बात होगी, वो वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव किया जा सकता है, मतलब किया जाएगा, क्योंकि वो अब रिड्यूस हो गया, आपके सिलेबस में नहीं है। इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस बॉक्स में पूछे गए हैं। एक यही है, रोमन मैम पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस और प्लेन्स। सो आई थिंक इट्स अ क्लियर आंसर बिकॉज फॉर दैट वी नीड to have the angles between them, so this will not be asked. Well ma'am, अगर आप यहाँ डिलीटेड क्वेश्चंस के लिस्ट में देखेंगे तो मैंने उन क्वेश्चन का ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चन शायद मैंने ज्यादा डाल दिए हो या कम डाल दिए हो तो आप प्लीज एक बार हमें भी बताएं ताकि हम लोग भी इसको एडिट करें। एक और क्वेश्चन पूछा है चारू मैम ने, इक्वेशन ऑफ प्लेन विद 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स also not be there as scalar triple product is involved। मैं वही बात कह रहा था ना कि एसटीपी यूज हो जाएगा, उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज हो जाएगा, तो हम वो वेक्टर का नॉलेज यहाँ यूज कर लेते थे, लेकिन अब हम उसको अगर नॉलेज यूज करना चाहते हैं तो सर यूज तो कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में तो लिखा होता है ना इनोवेटिव मेथड, हम इसको इनोवेटिव मेथड मान लेंगे 2021 वाले बच्चों के लिए। सर यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, पढ़ाना है, दैट इज आई थिंक अ सिंपल वर्ड एवरीवन वुड लाइक टू नो। तो उसमें क्या लगता है राहुल सर या पंकज सर? Sir, what I feel is these type of questions have to be done because finding out the equation of a plane passing through 3 non-collinear points, we can do it in other ways also, if I'm right. और अगर इजीली करना है तो फिर हम डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करते हैं सर, अगर आसानी से करना है तो। उसी बात पे मैंने शायद ये बात कई बार कही है कि एज ए टीचर ये हमारा कॉल है कि हमें क्या करना है अभी, और बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए वो वाला मेथड कराना है, भले ही वो मेथड आपके एनसीईआरटी बुक में होने के बावजूद 21 के एग्जाम में नहीं आएगा। तो अब क्योंकि ये चीज तो सीबीएसई डॉक्यूमेंट में भी मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में कि सीबीएसई इज नॉट गोइंग टू पुट डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन डिलीटेड पोर्शंस, लेकिन दिस काइंड ऑफ कांसेप्ट्स जो कि डिलीटेड पोर्शन में है वो स्कूल अथॉरिटीज मस्ट शुड बी टॉट, हेड ऑफ द स्कूल्स मस्ट एंश्योर कि ये बातें पढ़ाई जाएं। तो आई थिंक हमारे important point I want to make here is direct questions from angle between two lines and angle between two planes. These direct questions on this will not come, but then like finding equation of plane through 3 points and I feel other concepts which are there but based on this, so direct questions on these will not come, deleted ones, but other things I think we can give some idea to the children and can be there other things which सर चैप्टर 9 से बीच में एक पूछा गया, मैं एक बार पिछली स्लाइड पे आ रहा हूँ, अगर आप उस क्वेश्चन को भी आंसर कर दें साथ साथ।
सो नाइन्थ में क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि व्हाट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ लीनियर फंक्शन, Solution of डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर फंक्शंस, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या रहेगा? all solutions are there, sir. Amit दे sir, आर ऑल all, देयर. हाँ. see, yes, we have only three formation methods. is not there. Yeah, we have three methods. All three methods are there. Mhm. Only the two inverse ones of homogeneous and linear is not there, but otherwise it is fully intact. Yes. Okay, let's move further. Now again some welcome moves from CBSE in the unit 5, that is linear programming. Welcome moves means word problems नहीं आएंगे बच्चों को, बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे डायरेक्टली, उनको कंस्ट्रेंट्स मिल जाएंगे, टू मैक्सिमाइज और टू मिनिमाइज उनको करना होगा सिंपली ग्राफ प्लॉट करके. लेकिन ग्राफ में भी यहाँ पर एक और वेलकम मूव क्या है कि अब उसको ना अनबाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन बनता है तो वहाँ पर बच्चे काम बढ़ जाता है, फिर डॉटेड लाइन प्लॉट करता है, उसका शेडिंग करता है, फिर 2-3 स्टेटमेंट्स और लिखता है और फिर उसको काफी टीडियस वर्क लगता है. कुछ बच्चे ये चीजें भूल भी जाते हैं कि ये डॉटेड लाइन वाला भी काम करना था यहाँ पर, बिकॉज बाउंडेड रीजन अनबाउंडेड रीजन आया हुआ है, फिजिबल रीजन. तो अब ये दो वेलकम मूव्स है मेरे ख्याल में यहाँ पर. पंकज सर एंड अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा. एक्चुअली ये जो पीपीटी में है एक्सरसाइज 12.1, इसमें जो मैंने पूरा लिखा हुआ है एक्सरसाइज 12.1 इज नॉट डिलीटेड, बट एक्चुअली यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस है, पीपल कैन मेक अ नोट ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, I repeat, question number 4, question number 6, question number 9 and question number 10 डिलीटेड में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बाउंडेड रीजन नहीं आएगा, अनबाउंडेड रीजन आएगा. तो बेसिकली थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट मैंने फाइनल ड्राफ्ट बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एडिटिंग आई थिंक लास्ट मोमेंट के काम थे ये, थोड़ा सा. यस, पंकज सर एंड राहुल सर प्लीज. बस सर इसमें तो कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला जी जी जी. ओनली सिंपल सा है कि डायरेक्ट इक्वेशंस आर गिवन. ठीक है. देन द लास्ट वन, यहाँ पर जो डिलीटेड पोर्शन है वहां पर कुछ वेलकम मूव्स हैं और कुछ नॉट सो वेलकम. मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक की बात करते हैं जिसमें मीन एंड वेरिएंस भी इंक्लूडेड होता है, तो मीन एंड वेरिएंस तो डिलीट हो गया. जैसे आप डिलीटेड वाले कॉलम में देखेंगे, डिलीटेड क्वेश्चंस वाले कॉलम में, तो आई हैव क्लियरली मेंशन एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन 10 to 17 डिलीटेड, क्योंकि वहां पर मीन एंड वेरिएंस पूछा गया है. लेकिन ब्रैकेट में मैंने चीज मेंशन कर दिया है कि ओनली मीन एंड वेरिएंस डिलीटेड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द सेम क्वेश्चंस may still be asked. अभी भी मतलब वही सेकंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन डिलीट हो गया. लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि दे नॉर्मली आस्क के फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस फाइंड द मीन एंड वेरिएंस. तो ये जो हेंस फाइंड द मीन एंड वेरिएंस वो डिलीट हो गया. पहला पोर्शन यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन may still be asked, वो भले ही क्वेश्चन नंबर 10 हो या 11 हो या 12 हो या 17 हो 13.4 एक्सरसाइज से. लेकिन अब यहाँ पर जो मैं कह रहा था अनवेलकम मूव, एक्चुअली क्या था कि लास्ट सेशन में मींस जब 2019 to 20 वाला सेशन था, उसमें भी बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिलीटेड एंड इट वाज ब्रॉट बैक व्हेन द करिकुलम डॉक्यूमेंट वाज इश्यूड इन मार्च 2020 फॉर 2020 to 21 सेशन. अब ये क्यों लाया गया था ये राहुल सर बताएंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से, लेकिन अब वो चीज फिर से डिलीट कर दी गई है. तो अब ये क्यों लाया, फिर डिलीट कर दिया. अभी डिलीट करने का रीजन आप मतलब अभी करंट सिचुएशन को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ कंसेप्ट का लिंक क्या बनता है पंकज सर एंड राहुल सर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. यस सर. राहुल सर Yeah, what I want to say is, देखिए in probability distribution is there, mean variance is not there, but in probability distribution also like अब बच्चों को की probability distribution में with replacement आ सकता है या नहीं. See, with replacement can also still it can come. For solving में we will not use binomial like two red balls or two kings. Like king and king, you just multiply the probability. So binomial का use नहीं करना है because it's not there. Otherwise those questions can still be asked. Yes sir. Can do by multiplication. इस बार के जो हमारा दिल्ली एग्जाम था HMJ 5 सीरीज का, दिल्ली, देहरादून एंड त्रिवेंद्रम, तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ गया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें अगर बच्चा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है ना बाय चांस, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के हैं वो जी मेन के लिए प्रिपरेशन करते ही हैं, एनडीए जी मेन के लिए, तो उनको ये चीजें सिखा दी जाती है. शॉर्टकट है, ये जल्दी आंसर आ जाएगा इससे. तुम केसेस बनाओगे उससे अच्छा ये बर्नौली ट्रायल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लो. तो यानी अगर उस बच्चे ने सीबीएसई में अगर क्वेश्चन मार्च 2020 में अगर किसी बच्चे ने इस मेथड से क्वेश्चन कर दिया होगा, तो अभी क्या सीबीएसई इसको इनोवेटिव मेथड मानेगी अगर मार्च 2020 में, तो 21 में क्या मानेगी? सर बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ. जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा होते हैं ना कि 4, 5, 6,
हाँ, तब तो वो दूसरी चीज में डिफिकल्टी होती है। अदरवाइज 3 केसेस में उसमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 बॉल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं 4, सो उसमें कुछ 4-5 केसेस बनते हैं, इजीली हो जाता है। कोई अगर 4 मार्क का सर ये क्वेश्चन है बहुत तो उतना ही टाइम आई विल इंटरप्ट पंकज सर, ये बहुत एक हम्म, मतलब छलावे वाला वर्ड है, इल्यूजन क्रिएट करता है, आसान मतलब इजी है या डिफिकल्ट है। हाँ, मेरे को 3 ऐसा केसेस होता भी है। डिफिकल्ट लगते हैं और मेरे पास नहीं, अगर एक तलवार है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्या मैं उसे यूज करूंगा या नहीं करूंगा? आई मीन एज ए डेफ स्टूडेंट आई एम आस्किंग। तो इसलिए मैंने पूछा कि आप लोग बेटर वे में नहीं, नहीं, एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि वो ये बच्चे डेफिनेटली लेकर है आएंगे कि टीचर्स के सामने इस टाइप की चीजें कि हमारे कोचिंग में ऐसा बता दिया है, ऐसा होता है Okay. कि सर तो बोर्ड में बेसिकली करेंगे या क्या नहीं है, करेंगे? नहीं, 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 बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना इजी करता है क्वेश्चन को, डेफिनेटली करता है। यस अदरवाइज हम यस। अगर इसी चीज को हम लिमिट्स में काउंट करें कि लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल जो भी हॉस्पिटल रूल है, अगर उसको यूज करते हैं कितना इजी हो जाता है वो क्वेश्चन। तो लेकिन जो चीज अगर सीबीएसई ने उसको प्रिस्क्राइब कर दी, हाँ क्यों डिलीट किया, ये मेरी राहुल सर से लास्ट ईयर भी ये बात हुई थी कि ये ऐड होना चाहिए दोबारा, लेकिन अब इन्होंने फिर इस बार कर दिया। आई डोंट नो कि क्या रीजन रहा, सर वो लेकिन अब 30% रिडक्शन है, लेट्स प्रोसीड फर्दर बस बिकॉज 11th डेफिनेटली क्लास भी डिस्कस करना है, यस right? यस। So there is no हाँ, end to the discussion as such, right? Because many या of the teachers are waiting for now about the activities, right? तो उसके लिए अब हम क्या, थोड़ा हमारी तरफ से आइडियाज होंगे पहले। ठीक है। So I think Rahul sir will explain this portion better. Activity No, में expert हैं। Yes, activities, Rahul so sir. like there is no changes in the activities. जो अभी तक status quo है, that is maintained, and you can also take some activities. Suppose we are not teaching a particular topic, उस पर भी based activities can be done. Like Rowley For theorem example, and limit mean of value sum, theorem या limit limit of of Yeah, sum। yeah. sum, yes, Yeah, activities में ले सकते हैं। NCERT also says कि जो reduced syllabus है, the reduction है, उसके alternatively activities में we can take them. So इनफैक्ट आई वुड पर्सनली सजेस्ट ईच एंड एवरी टीचर के आपकी जो भी आप तक एक्टिविटीज आपने एक दो करवा लिया, दैट्स ओके, पर अब जो पेंडिंग रह रही हैं वो डिलीटेड सिलेबस, और वो अगर आपको लगता है कि नेचुरली वो इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए, फॉर एग्जांपल लिमिट एज अ सम का बेसिक Limit कंसेप्ट, of तो sum यू या। कैन टेक दैट एज एन एक्टिविटी। और सीबीएसई की तरफ से वो मेन करिकुलम स्टार्टिंग में जो उसका आया है रिड्यूस वाला सर्कुलर, उसमें क्लियरली दे हैव मेंशन्ड अबाउट इट कि जो चीजें डिलीट हुई हैं, टीचर्स जो हैं एचओएस इनफैक्ट दे विल एंश्योर कि टीचर्स उन चीजों को भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लें, बिकॉज इन एग्जामिनेशन जो फ्यूचर में होने वाले आईआईटीज या और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, दे माइट नॉट रिड्यूस देयर सिलेबस। सो दैट इज right, अनदर एप्रीहेंशन, जो एक पॉइंट शायद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उसका क्या है, बिकॉज देयर इज नो क्लियर कट पॉलिसी एज सच नाउ, but there is no change in the number of activities. It is 10 only, as we were doing last time. The same internal assessment pattern is to be followed. It is clearly mentioned by CBSE. The same is in the revised curriculum document also. Yes, yes, it's yes, exactly the same. no change. Yeah. Next slide, sir. Yeah. Anyone would like to ask any question related to class 12th क्लास से रिलेटेड? इन केस अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्विकली, फिर हम 11th क्लास पे बात कर लेंगे। यस ऑफ कोर्स विनोद, yes, आप जो कह रहे हैं रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू Elevating, थ्योरम, इफ यू वांट that can be taken yes, as an activity. बिल्कुल Excellent. perfectly. I would, in fact, in my school, I'm going to take that. I would prefer to take that. सी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी हटने के बाद अगर आप कहते हैं कि 6 मार्कर कैसा आएगा, तो इस केस में से तो वी नीड टू वेट फॉर दी सैंपल Well, पेपर। equations वाला question जो linear आता है equations, मैट्रिक्स में solve equation linear वाला equations, question। यस, हाँ, 6 solving mark, क्वेश्चन the या system of क्वेश्चन equation। पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं, वो तो सीबीएसई जब डिक्लेयर करेगा सैंपल पेपर आएंगे, बट ऑफ कोर्स वी आर इन टच विद फ्यू एक्सपर्ट्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सीबीएसई, so we'll make a request to them to take the session and in fact request them to prepare say 1 or 2 sample papers also for us. प्राइवेट पब्लिकेशन पे फ्रेंकली आई डोंट बिलीव, ये यू लाइक से लेकर XYZ अगर पब्लिकेशन है तो वो कितना एक विजडम के साथ उन सैंपल पेपर को रिलीज करेंगे, रिवाइज करेंगे, आई एम डाउटफुल। बट येस, इफ वी हैव सम अथॉन्टिक रिसोर्सेज, उनके थ्रू हम क्वेश्चन पेपर एंड इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस सिलेबस पे बेस्ड अपना विजडम यूज करते हुए काइंडली प्रिपेयर 1 सैंपल पेपर एंड वी कैन कोलैबोरेट, वी कैन शेयर आवर आइडियाज विद ईच yes, अदर, पेपर शेयर कर सकते हैं so that we can come up with the 10-20 different sample papers. MCQ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। राहुल सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्टली सेम पैटर्न की ही बात हुई है इस चीज को लेकर भी अभी भी?
मैथ्स में हमारा कोई 20 क्वेश्चंस का Same. Sir, I don't have much idea about idea this. about it. Okay. एक्चुअली न्यूज Right. में कुछ था इसके बारे में You कि have to- नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मे बी इंक्रीज्ड, न्यूज Yeah. में ऐसा कुछ आया था, बट And वो डायरेक्ट stand- लिंक नहीं मेरे पास है अभी। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोर्स जब मीन एंड वेरिएंस कट गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोर्स इट विल नॉट कम. Yeah, it's not. Yeah. Okay. Let's proceed further for class 11 quickly now. Yeah. For class 11th, again the course structure, I think it is same like class 12. So maybe we can skip this portion because, of course, we are going to use our wisdom in deciding the number of periods that can be allotted to a particular topic. So now Unit 1, that is sets and functions. So deleted portion, actually मैंने यहाँ पर जो deleted suggested questions है वो मैंने prepare नहीं किए हैं. As you can see in the bottom, I have mentioned exact deleted question may be explored by the teachers themselves. From chapter 1, difference of sets, complement of a set, properties of complement, ये delete हो गए. लेकिन यहाँ पर कुछ questions मैंने देखे ग्रुप्स में डिस्कस हो रहे थे कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनके बारे में क्या है. तो जो सेट्स चैप्टर में एनसीईआरटी में भी हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, उनके बारे में क्या स्टेटस है. तो वर्ड प्रॉब्लम्स या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसा कोई वर्ड प्रीवियस करिकुलम डॉक्यूमेंट में भी नहीं था और अभी वाले यानी रिवाइज्ड करिकुलम डॉक्यूमेंट में भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है. एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम फ्रॉम सेट्स या वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम सेट्स, ऐसा कोई वर्ड ना पहले था ना अब है. वेन डायग्राम पहले ही मेंशन था, अभी भी है, और वेन डायग्राम का यूज करके मैक्सिमम टीचर्स वर्ड प्रॉब्लम्स बड़े आराम से एक्सप्लेन कर देते हैं, बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जाता है. तो आई थिंक इस टाइप के प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे सिलेबस में एग्जिस्ट करते हैं. ऑन द लेटर पार्ट पंकज सर विल टेक ओवर ऑन दिस डिस्कशन, क्योंकि चैप्टर 2 में यहीं पर एक्चुअली खत्म कर, छोटा सा है वहां पर. चैप्टर 2 में 2 क्वेश्चन इन्होंने डिलीट किए हैं एनसीईआरटी से. अब चैप्टर 3 मैं बाद में लूंगा, पहले चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. सर बेसिकली क्या है, हाँ यस, चैप्टर 1 में जो डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये डिलीट होने का मीन्स है कि डी मॉर्गन्स लॉ को हमें प्रूव करना है, उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. जहां पर भी कुछ प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट का यूज हो रहा है, वो बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं होंगे सिलेबस में. बट 11th क्लास बेसिकली क्या है, वही चीज है जैसे आपने नीचे लिखा है कि टीचर्स टू टीचर डिपेंड करता है कि कुछ स्कूल्स में वो किस टाइप से क्या सिलेबस लेते हैं. सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि ये हमारा सिलेबस है, बट कुछ स्कूल्स अपने अकॉर्डिंगली भी, अगर मान लीजिए कोई टीचर ऐसा सोचता है कि मैंने कॉम्प्लीमेंट करवा दिया और वो अपने स्कूल में उस क्वेश्चन को पूछ रहा है, देखिए वो अप टू दैट टीचर्स. बट बेसिकली सीबीएसई ने कॉम्प्लीमेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड जितनी भी क्वेश्चंस हैं सर पहले भी कई स्कूल्स में मैथमेटिकल रीजनिंग वाला चैप्टर है वो कई स्कूल्स में कटवा देते थे. यस यस सर, सेम. तो अब इस साल डिलीट कर दिया है तो भी कोई अच्छी बात या बुरी बात है नहीं उन टीचर्स या उन स्कूल्स के लिए, ना तो अच्छी बात है ना बुरी बात है, वो तो न्यूट्रल रहे, क्योंकि पहले भी वो नहीं कराते थे. तो ऐसे ही यहाँ पर चैप्टर 1 के लिए भी है कि हर टीचर हर स्कूल में अपने हिसाब से 11th में चीजों को मैनेज करता है. One point I want to add here is that these are very special circumstances and you know अभी तक अपनी लाइफ में हमने ऐसा नहीं देखा जो किया. And you know when you consider the whole all India survey, there are many students who don't have access to the smartphones, they don't have laptops. Yes, ये तो we are lucky enough and the resources are very in terms of percentage ऐसे हैं. So even for 11th class I think like when I will be teaching induction का हम थोड़ा idea दे देंगे, binomial भी थोड़ा देंगे, so that students in their when these students will come in 12th, obviously शायद तब तक ये problem we get over all this problem, then they have to study other things also, then maybe full curriculum is there. तो थोड़ा आप आइडिया दे सकते हैं इन 11th क्लास. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स एंड एक्सप्लेनिंग देम दीस कांसेप्ट्स. तो ये वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. ये आपके दिल के ऊपर, आपका दिल कितना मानता है, दिमाग माने ना माने दिल कितना मानता है कि बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन कितना कर रहे हो आप एज ए. इट्स बीन डन कि बच्चों को थोड़ा एडवांटेज मिल जाए कि जो उनका असेसमेंट है दैट इज उसमें कुछ 2-3 चैप्टर्स का रिडक्शन हो जाए. This is what I personally feel. राहुल सर एक बात, मुझे एक्चुअली वो अगले यूनिट में आने ही वाला है, मुझे एकदम से भी क्लिक हुआ एक्चुअली क्या कि प्रिंसिपल ऑफ ये मेरे से पर्सनली किसी टीचर ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो इस सेशन में डिलीट हुआ है, अभी डिलीट हुआ है. लेकिन जो इस सेशन में 12th वाला बच्चा है वो मैट्रिक्स चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला क्वेश्चन करे या ना करे. योर एक्सपर्ट कमेंट सर. अभी right now they will not do. 12th वाले को करना पड़ेगा. Yes, present 12th will not do. नहीं सर, प्रेजेंट 12th वाला क्यों नहीं करेगा? प्रेजेंट 12th वाले ने तो इंडक्शन वाला चैप्टर 11th में पिछले साल पढ़ लिया ना. हाँ तो करेगा ना, तो 12th वाला करेगा. अच्छा सॉरी मैं सुन नहीं पाया. ठीक, ओके. नहीं, इनफैक्ट आपको बहुत सारे ऐसे चीजें 11th में करानी पड़ेंगी जो अगले साल 12th से कनेक्टेड होंगी. यस. आप बिना उसके, चाहे वो सीबीएसई ने रिकमेंड किया है या नहीं किया, एज अ टीचर
आपको वो सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो स्टूडेंट के फायदे के लिए होंगी, अगले साल उनको पूछा जा सकता है। तो आप सिर्फ सिलेबस को गाइडलाइन ना माने, और 11th में तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आज आप चीजें छुड़वा रहे हैं और अगले साल फिर से उनसे वही चीजें पूछने वाले हैं। यस सर। इट्स बेटर कि इसी साल कराएं सर एक डेफिनेटली बात और भी है, वो चीज मैंने स्लाइड में वैसे फ्यूचर में मेंशन किया हुआ है कि अगर इस समय हमने कोई टॉपिक छुड़वा दिया और नेक्स्ट ईयर होपफुली सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो अगले साल वाले स्टूडेंट्स को हर चीज पढ़नी है, जो डिलीट हो गया वो भी पढ़ना है 12th में, जो यही बच्चा 12th में पहुंचेगा, तो क्या वहां पर स्कूल्स टीचर्स अपने लेवल पे कुछ एक्स्ट्रा टाइमिंग निकाल कर 11th के वो वाले टॉपिक तब कराएंगे जो वो अब नहीं कराएंगे? नहीं, तो कराना पड़ेगा उनको, अगर अभी नहीं कराएंगे तो तब कराना पड़ेगा। नहीं गुप्ता सर, ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल उनकी कोई और गाइडलाइंस आ जाए या सिलेबस आ जाए और उसमें से ये क्वेश्चंस डिलीट कर दें, बट एज अ टीचर आज की डेट में तो आपको प्रिपेयर रहना ही है। हो सकता है अगले साल जैसे आप जैसे कह रहे हो कि मैट्रिक्स का वो क्वेश्चन है जिसमें पीएमआई वगैरह लगती हैं, तो हो सकता है वो डिलीट हो जाए। अभी तो आज की गाइडलाइंस के हिसाब से आप काम करेंगे, और 11th वालों के साथ आप ये मान के चलेंगे कि 12th में ये पूछा जा सकता है, तो एडिशनल थोड़ा सा पेन लेके उनको वो भी तैयार करेंगे। अगले साल अगर कोई और नई गाइडलाइन आती है और सिलेबस चेंज होता है, जो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा तो चेंज होगा ही होगा, दे वुड नॉट बी एबल टू कम अप विद 100% ऑफ द सिलेबस, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने 11th में काफी सारा सिलेबस छुड़वाया। तो अभी वेट करेंगे, लेकिन 11th के साथ हम थोड़ा सा केयरफुली जो 12th में हमारा आ सकता है उसमें एडिशनल पीरियड्स लेके और वो सिलेबस अपनी कॉन्शियस के हिसाब से वो कवर कराएं। And what I personally feel that CBSE will definitely come up with some bridge course booklet kind of a thing जो present 11th के बच्चे हैं उनके लिए, कि जब वो 12th में आ गए so they have missed certain topics, सब टॉपिक्स, जैसे अभी ये बात हो रही थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जनरल सॉल्यूशंस, ये तो एक एग्जांपल है। इस तरह के 10 of the different possibilities are there which they require in class 12. So I am 100% sure about this that CBSE will come up with some document और उसमें कोई ऐसा ब्रिज कोर्स का नाम दे दिया ताकि उस लर्निंग गैप को कंप्लीट किया जा सके। So or CBSE definitely. Personally, I'll be taking up these topics. उनको थोड़ा idea तो देना ही पड़ेगा about binomial and addition, so that later on, as very rightly said by संजीव सर, वो बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जो भी गैप है वो फिल तो टीचर नहीं करने, जहाँ भी टीचर को ये फील होता है कि यहाँ पर ये गैप रह जाएगा अगर मैं नहीं करवाऊँ, तो वो गैप तो टीचर्स को ही फिल करना पड़ेगा, वो अभी भी करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर भी करना पड़ेगा। तो अभी करेंगे तो बेटर रहेगा कि 11th में 12th में उनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आए। Right. Chalo, let's proceed further. So for the next chapter, that is trigonometric function. So it is clearly mentioned general solution of trigonometric equation of the mentioned type is now deleted. But यहाँ पर एक confusion create हो सकता है. Suppose I am just writing sin x equal to 0. अब इस equation के लिए मुझे so we normally write x equal to n pi where n is integer. तो अब ये general solution में है या नहीं? So what I feel कि ये जो 0 है basically ये sin 0 है. तो यानी अब ये साइन y इक्वल टू साइन ए वाले फॉर्म से लिंक कर जाएगा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर इस टाइप का फॉर्म भी डिलीटेड में काउंट किया जाएगा। ओवर टू पंकज सर एंड राहुल सर फॉर द फर्दर कमेंट्स। These should be taken, sin theta 0 and cos theta 0 is very well there. Only these are special cases. Yeah. In fact, using graph general solution, I think so. That. No sir, जनरल सॉल्यूशन, बट अगर हम ग्राफ की तो बात कर ही रहे हैं, बेसिक आइडिया की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ के थ्रू हम बता ही देते हैं कि 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। सो ग्राफिकल इट्स अ सिंपल विजुअल फॉर द स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वैल्यू 0 हो रही है। तो इवन आई थिंक that it may not be taken as, although you are right, but ये जनरल सॉल्यूशन के अलावा इसको नॉर्मल मेथड में काउंट कर सकते हैं और इससे बेस क्वेश्चन मैं मानता हूँ आने चाहिए बच्चों। सर जैसे अगर हम ये जनरलाइज करते हैं तो ये n वर्ड जो यहाँ पर आया, n जो सिंबल आया where n is integer, तो ये जनरलाइजेशन ये n के कारण ही आया है यहाँ पे कि हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। तो अब ये जनरल सॉल्यूशन के वर्ड में जो जनरल है वो इसी n के कारण है, जनरलाइजेशन के कारण ही है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग my own logic here. मैं बताता हूँ। Best up to each and every teacher, मतलब हम सभी के ऊपर है। हाँ, मैं तो पढ़ाऊंगा, आप भी पढ़ाएंगे, मुझे पता है। हाँ, सब पढ़ाएंगे सर। बेसिकली क्या है कि कुछ चीजें
सीबीएसई ने स्टूडेंट्स का बर्डन कम करने के लिए लिखी है। उसमें उन्होंने, अगर आप बुक में देखेंगे, बुक में अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 को साइन 0 के अकॉर्डिंग लेना होता तो उसके अलग फॉर्मूले लिखते ही नहीं, राइट। उन्होंने एक ये कर दिया कि साइन एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स इक्वल टू 0, टेन एक्स इक्वल टू 0, इनके अलग फॉर्मूले बताए, और साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, cos y इक्वल में cos से जो भी आप लिख रहे हैं tan y इक्वल टू tan है, तो इनके अलग फॉर्मूले बताए। अगर उन्होंने इन दोनों को कंबाइन करना होता तो अलग नहीं लिखते। तो अब समझ लीजिए उनका हमने बर्डन कम कर दिया कि sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0, ये आपने करने हैं। तो ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसमें दोनों कनेक्टेड होंगे, जैसे एक्सरसाइज 3.4। पंकज सर, इवन अगर हम पुराना करिकुलम डॉक्यूमेंट देखें तो वहां पर भी यही चीज एज इट इज मेंशन थी कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ दीज फॉर्म्स जो मेंशन है ये वाले हैं। वहां पर भी उन्होंने पहले ये नहीं लिखा था कि sin x या sin y इक्वल टू 0 या cos y इक्वल, ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि वो है या नहीं है। तो अब वो चीज तो हमारे रिड्यूस सिलेबस में भी उन्होंने वो लिखी ही नहीं है। तो मैं उस तरीके से कह रहा हूँ कि क्या ये वाला फॉर्म जनरल सॉल्यूशन वाला अभी है या नहीं है, क्योंकि n वाला जो वर्ड है यहाँ पे n जो लेटर है तो उसके कारण जनरलाइजेशन आता है, जनरलाइजेशन उसी के कारण आता है। तो मतलब मैं इस चीज में हूँ कि या सर वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज जो ये डिलीटेड पोर्शन है दैट इज इन द प्रेजेंट करिकुलम, व्हाट पर्टिकुलर थिंग शुड नॉट बी देयर, सो इट इज नॉट रीफ्रेम्ड। व्हाट आई कुड फाइंड आउट वाज कि वो रीफ्रेमिंग नहीं हुआ है, सो थोड़ा सा इसलिए लाइक इन इफ यू सी इन कैलकुलस इन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल area between any two above said curves, because it is written in the curriculum area between any of the above two curves. So deletion में भी वही लिखा गया है, area between any of the above two curves. तो वो any of the above two gives sometimes ये अब any of the above two कहाँ से आ गया? This is actually it was written like that and that particular part is to be taken out. तो इसीलिए जो हमारा present curriculum है उसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो sin theta, ये देखिए I'll just read out. General solution of trigonometric equations of the type sin y equal to sin a, cos y equal to cos a, and tan y equal to tan a. तो अलग से sin theta is 0 and cos theta is not mentioned in the curriculum. तो वो अलग से उसका input भी नहीं है. So those things are there, and this particular thing, as far as intended meaning like. Yeah, next one. Yes, principal solutions, of course, they are here. They are in the syllabus. Yes. Yeah, principle is there. So principle of mathematical induction, welcome हो whatever burden कम करने के लिए, it has been completely deleted. और मेरे ख्याल में इसके बारे में भी डिस्कशन भी हो रहा था कि नेक्स्ट ईयर अगर मैट्राइसिस में ऐसे क्वेश्चन हमारे अभी प्रेजेंट 11th के बच्चे जब नेक्स्ट ईयर 12th में पहुंचेंगे तो उनको इस चीज की नॉलेज हमें अभी देनी है या तब देनी है 12th में जब तब देनी है। रीजन है अभी इंडक्शन के क्वेश्चन मैट्राइसिस में भी हैं। यस सर संजीव सर ने जैसा कहा कि अभी नेक्स्ट ईयर का जो सिलेबस है हो सकता है कि उसमें भी कुछ चेंजेस किए जाए। उस स्टेज पर हो सकता है कि जब ये जो प्रेजेंट 11th है उस समय ये पीएमआई नहीं पढ़कर आई है तो उस समय जो भी 3-4 क्वेश्चंस है उनको वो डिलीट कर दें मे बी वो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन हम इसके भरोसे शायद कर सकते हैं। अगर अभी इसके भरोसे बैठना है तो नेक्स्ट ईयर पढ़ाना पड़ेगा या फिर अभी पढ़ा दो तो अगले साल जो होगा देखा जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज का कोई लॉस नहीं होगा। अगर हम उस स्टूडेंट्स के बर्डन कम करना तो अगर हम फिर हर टॉपिक को अगर सपोज पीएम आई है इसका कोई अभी प्रेजेंट 11th में आगे कहीं पर भी कनेक्शन नहीं है तो अगर हम टाइमिंग इसको नहीं भी करवाएंगे, हाँ लास्ट में हमारे पास टाइम बचता है तो हम इस चैप्टर को लेकर उनको बता सकते हैं कोई भी टीचर। अदरवाइज इसको 12th में भी बताया जा सकता है कि उस समय की क्या सिलेबस डिस्क्राइब होता है, वो इसको कट करते हैं या उसको रखते हैं, क्योंकि चेंजेस 100% होगा वहां पर भी कि अगर इस बार का स्टूडेंट 30% सिलेबस कम पढ़ रहा है। देखिए ये तो टीचर्स के ऊपर है कि टीचर्स करवा रहे हैं, लेकिन सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो 30% कम कर दिया तो 12th में भी डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ चेंजेस उस समय जो प्रेजेंट 11th वाले जब 12th में जाएंगे उनके लिए चेंज करना ही पड़ेगा। तो वो उनकी जो भी मीटिंग्स होंगी या जैसा भी सिलेबस वो लाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली भी डिस्कस किया जा सकता है। सर लेट्स बी क्विकली, आई मीन लिटिल बिट क्विक. It's already in complex numbers, I'm not going to discuss about whatever is deleted, but there is one question that we can discuss about. Questions requiring the use of general solutions of trigonometric functions are there in NCERT miscellaneous of chapter 5, 11th class. So these type of questions which require the knowledge of those deleted portions from the previous chapters should stand cancelled, should stand deleted.
चैप्टर 6 दैट इज एज इट इज इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 7 में अब यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज फॉर एनपीआर एंड एनसीआर मींस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड देयर कनेक्शन मींस एनपीआर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल टाइम्स एनसीआर, दीज आर डिलीटेड। सो पंकज सर एंड राहुल सर। नहीं सर, बिल्कुल सही है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो क्वेश्चंस है, फाइंड रियल थीटा फॉर प्योरली इमेजिनरी फॉर प्योरली रियल, उसमें कहीं पर जो जनरल सॉल्यूशन यूज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पर स्टूडेंट थीटा की वैल्यूज अगर प्रिंसिपल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली बताएगा तो ठीक किया जाएगा, क्योंकि हमने उसको ये अब क्वेश्चन भी ऐसे ही फ्रेम करना चाहिए, राइट? क्वेश्चन भी ऐसे ही फ्रेम करना चाहिए, वो मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा की जगह वहां उनको थीटा बिलोंग्स टू पर्टिकुलर क्वाड्रेंट मेंशन करना चाहिए, पर्टिकुलर इंटरवल्स दे दिया जाए। डेफिनेटली सर आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर वो sin थीटा इक्वल टू 0 ही कुछ बन रहा था उसमें, बहुत है ना? लेकिन उसमें सर उस क्वेश्चन में ना सर प्योरली इमेजिनरी पूछते हैं, प्योरली इमेजिनरी उसमें ना टीचर्स कुछ अपनी तरफ से मॉड्यूलेशंस कर देते हैं ना, प्योरली रियल का प्योरली इमेजिनरी ऐसा कुछ कर देते हैं, उसमें जनरल सॉल्यूशन की यूज होता है। अच्छा, मोरओवर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि टीचर्स, जैसे आपने अभी कहा पीएमआई करवा देना चाहिए नेक्स्ट से। देखिए इस बार प्रॉब्लम ऐसी है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो हर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए उनको ऊपर टाइम हमारा ज्यादा लग रहा है कि जहां हम अगर क्लास में जब ऑफलाइन उनके फेस टू फेस होते थे, जो चीज हम उनको 4 पीरियड्स में समझा सकते थे, अब हमारे 6 पीरियड लग रहे हैं। तो अभी टाइमिंग नेक्स्ट ईयर होपफुली बिल्कुल टाइम सही होगा, तो कुछ चीजें जो कनेक्टेड नहीं है प्रेजेंट सिलेबस से, तो उनको अगर टीचर छोड़कर बाकी चीजों पर स्ट्रेस और देगा, जैसे अभी पीएमआई की बात ही मैं लेकर चल रहा हूँ, तो पीएमआई जरूरी नहीं है कि इस साल करवाया जाए, आप इसका जो स्ट्रेस है वो और दूसरे चैप्टर्स पर करिए, उनको बार बार दूसरे टॉपिक करवाएं तो बेटर रहेगा। ये मेरा व्यू है सर। अ चाइल्ड इफ ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, तो उसका स्क्रीन टाइम अगर 4-5 आवर्स इज सिटिंग, सो ऑब्वियसली उसका स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू फोकस। यस सर या तो अभी अगर हम बच्चों को ये 3 चैप्टर अभी फॉर नॉट फॉर असेसमेंट है, दैट थिंग इफ इट इज कन्वेड टू देम, तो दे विल बी वेरी हैप्पी वंस यू आर एबल टू फिनिश योर करिकुलम सिलेबस। तो उनको ये 2-3 चैप्टर्स का आइडिया दैट कैन बी गिवन लेटर ऑन वंस यू आर एबल टू फिनिश, एंड माइट बी we hope and wish कि at that time ये this COVID thing will also be gone. Yes sir. जैसे अमित सर कह रहे हैं, अमित सर ने बताया कि जैसे ब्रिज कोर्सेज, उस समय हम कोई भी ऐसा जो 11th से 12th में आएंगे बच्चे, उनके लिए कोई ऐसा ब्रिज कोर्स की जो हमने सिलेबस 11th में उनको नहीं करा, तो उनके लिए कुछ टाइम उस समय एक्स्ट्रा निकालें जब वो हमारे सामने ऑफलाइन होंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। And that will be in March 2022. Then these जो present 11th में है, Yes. जो present 11th, yes sir. So lot of time and there will be so many. Yes sir. Yeah. We have already talked about the next slide, means chapter 8 has already been discussed I think here. हमने पहले बात कर ली है, एंड सीक्वेंसेस इन सीरीज दैट इज चैप्टर 9। तो यहाँ पर स्पेशल सीक्वेंसेस का जो एक्सरसाइज है उसमें समेशन ऑफ के स्क्वायर एंड समेशन ऑफ के, ये डिलीटेड हो गया है, तो ठीक है, बच्चों का बर्डन कम होगा। आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस सर, या कुछ अगर इनपुट्स सर को देने हैं? सर ये स्ट्रेट है, कुछ नहीं है कि स्पेशल सीक्वेंसेस जो है वो डिलीट कर दिए, जीपी और एपी पर ही क्वेश्चंस हुए सर। यस, सप्लीमेंट्री पार्ट है जी। नेक्स्ट स्लाइड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन में एज सच जो था वो अभी भी है, यहाँ पर जो चीजें मेंशन्ड है, आई वाज गोइंग थ्रू अ डिस्कशन इन द डे टाइम विद सम एस्टीम्ड टीचर्स प्रेजेंट इन द सेशन आल्सो, एंड एज मेंशन यहाँ जो टॉपिक इन्होंने डिलीट किए हैं, अदरवाइज भी कई स्कूल में वो चीजें नॉर्मली पढ़ाई नहीं जाती थी, लेकिन जो जी मेन के लिए बच्चे प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग सेंटर में जाकर वहाँ पर ये चीजें पढ़ाई जाती थी, तो टीचर्स जो स्कूल के हैं नॉर्मली इन चीजों को वैसे भी स्किप कर देते थे। इनके ऊपर क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में नहीं है, बट यस कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी में चैप्टर 11 में शुरू के 2-3 पेज हैं, वहां पर ये कंसेप्ट्स मेंशन्ड है कि जो डीजेनरेटेड लाइंस का जो कंसेप्ट आपको यहाँ पर मेंशन दिख रहा होगा, तो ये डिलीटेड हो गया है। क्वेश्चन तो पहले भी नहीं थे और अभी भी एनसीईआरटी में नहीं है, तो ठीक है, इसके बारे में इतनी वरी की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, सो इट इज इंटैक्ट, जैसा था वैसा ही है। ओवर टू सर पंकज सर एंड राहुल सर। सर 3D तो में ज्यादा कुछ है भी नहीं करिकुलम में, इट्स ओनली आई थिंक 2 फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला वो 10th से बच्चा कॉलिंग कर लेता है, 10th क्लास से कॉलिंग कर लेता है। और स्ट्रेट लाइन में ये जो टॉपिक है, जो सेकंड वाला, इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इसको अगर हम सप्लीमेंट्री पार्ट की तरह नहीं भी ट्रीट करते हैं, वैसे भी स्टूडेंट्स इसको वैसे भी कर लेते हैं कि पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, स्लोप इज गिवन, सो दे हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म भी लगा लेते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी पॉइंट्स डायरेक्ट भी हो जाते हैं, अगर वो सप्लीमेंट्री पार्ट की तरह इसको नहीं भी ट्रीट करते हैं।
And in terms of teaching conic section, there is no change because that degenerate Right. intersection of plane with the cone, single point and line, वो तो that practical में उनको थोड़ा हम explain कर सकते हैं. सिखा देते हैं. How Yes, how sir. yeah. So that doesn't make much difference in conic section. It is still there. That's it for this chapter. Yeah. For the next unit, calculus, nil means it is intact as it is, जैसा पहले वैसा अभी भी है, और इसको जितना ज्यादा पढ़ा उतना अच्छा है. 12th के लिए बच्चों का बेसिक अच्छा रहेगा कैलकुलस. Yes, sir. एंड देन मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसे कि पहले बात हो चुकी है, कई स्कूल्स में पहले भी नहीं पढ़ाते थे, अभी भी नहीं पढ़ाएंगे, तो उनको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अब डिलीट हो गया. जहां पढ़ाते भी सर वेटेज भी 2 मार्क्स का था, अब आफ्टर 2 मार्क्स का किया. लेकिन मैं बात कर रहा था पंकज सर से, तो ही इज इन डीएवी, तो वो बता रहे थे उनका पेपर तो सेंट्रलाइज बन के आता है, तो उनके पेपर में पहले आता था 2 मार्क्स का, और बच्चों को आसान लगता है कि 2 नंबर तो हमारे ऐसे ही आ जाएंगे. तो अब ठीक है, पता नहीं इनके बच्चे अब खुश होंगे कि नहीं, बट एनीवे कंटेंट काफी है उसमें. रीजनिंग थोड़ा काफी पढ़ना पड़ता है फॉर दोस 2 मार्क्स. So it will be, I think, slightly reasoning तो पूरा मैथ्स ही रीजनिंग है, और ये इस 2 मार्क्स के लिए they can leave this. नेक्स्ट ओनली वेट फॉर 5 मिनट्स. हम वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट मिनट में अपना वीडियो ऑन कर लें, और रोहित विल टेक वन सेल्फी, जो हमारे एक ट्रेंड हम स्टार्ट करना चाहते हैं. आप सभी के स्माइलिंग फेस रहेंगे, तो प्लीज कंगी वंगी कर लो, क्योंकि आपकी सेल्फी हम कैप्चर करने वाले हैं आफ्टर 5 मिनट्स. सो प्लीज डू नॉट लीव. प्लीज कंटिन्यू. मैं फेस वॉश करके आ जाऊं. ओके, सो यूनिट 6 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. तो स्टैट्स में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला एक्सरसाइज है, जहां पर हमें डिफरेंट वेरिएंसेस की जरूरत पड़ती है, तो वो मतलब स्टैंड्स डिलीटेड. और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी में जो चीजें मेंशन की है ना, सबसे लास्ट में आप एक वर्ड देख रहे होंगे, कनेक्शन विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस. मींस सपोज p of a plus p of b plus p of c in a particular experiment is equal to 1. इस टाइप की चीजें होती हैं, या प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1 क्लोज इंटरवल. तो इस टाइप के जो कनेक्शंस है, जो हम 10th क्लास में पढ़ा चुके हैं, वो अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप रिपीट करेंगे तो उसमें समय कितना लगेगा ये आप देखें और डिसाइड करें. आप अगर बच्चे को नहीं आता है तो आप बताने में कितना समय लेंगे, तो कुछ ही समय लगेगा, मे बी शायद 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम. तो वो कनेक्शन आपको नहीं कराना है, सीबीएसई ये कह रही है, लेकिन हम तो कराएंगे. सो आई थिंक दैट इज एंड ऑफ द स्लाइड्स. आई थिंक मतलब टॉपिक वाइज का स्लाइड्स का तो एंड हो गया. बाकी लास्ट में ये कुछ सर पंकज सर आपने कुछ एनोटेशंस किया हुआ है शायद स्क्रीन पे ना, तो हाँ. सो अब यहाँ पर वो बातें लिखी हैं जो इन बिटवीन कई बार अमित सर ने, राहुल सर ने, पंकज सर ने, संजीव सर ने हमें काफी यहाँ बोला भी है, और वो बातें मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं. व्हाट कैन बी डन टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सिलेबस रिडक्शन ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन, द करंट सेशन 2020 to 21, एंड हाउ टू हेल्प देम अवॉइड द साइड इफेक्ट्स. पहला चीज आप सभी के लिए, हम सभी के लिए है, टीचर्स के लिए. एज टीचर्स वी कैन ensure to make students familiar with the deleted portion of the syllabus if time permits. जो कि शायद पता नहीं मिलेगा या कब मिलेगा, एंड होपफुली मिले, जल्दी मिले. हमें ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो हम टाइम मैनेज कर लेंगे. और सेकंड थिंग पॉलिसी मेकर्स के लिए है, जो फ्यूचर के लिए है, जो ये हमारे स्टूडेंट्स जो इस साल 12th में हैं, उनके लिए मैं ज्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेंगे, बाहर के कंट्रीज में भी जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहाँ स्टडी करने के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए. तो उन बच्चों के लिए, फिर इंडिया में भी, तो ये उनके लिए है कि जो ब्रिज कोर्स वाली बात है बीच में हो रही थी, तो मैंने वो मेंशन भी किया हुआ. कैन पॉलिसी मेकर्स एंश्योर टू एनरोल स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन, द करंट सेशन, इन अ ब्रिज कोर्स इन द हायर एजुकेशन इफ द कोर्स सिलेक्शन रिक्वायर्स. मीन सपोज द स्टूडेंट गोज फॉर बीटेक, तो अब उसके लिए अगर कोई ऐसी चीज की जरूरत है जो उसने अभी इस साल 12th में नहीं पढ़ा, तो क्या उसके लिए ब्रिज कोर्स ऐसा बनाया जा सकता है. इट विल हेल्प टू मिनिमाइज द लर्निंग गैप दैट हैज बीन क्रिएटेड, मे बी दैट विल बी क्रिएटेड. अगर हम भी उसको फिल नहीं कर पाए, शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन एंड वी कमिट मिस्टेक्स. या in the last slide there is a small request. Let's all of us be learners of math throughout the life. Let's all of us, well, I could not read it, but anyway, sorry. The document will be shared later on. वैसे भी small request आप खुद ही पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं आपसे. Anyway, let's all of us enrich our lives with the beauty of math. Let's all of us enlighten our the lives of our students. और ये most famous image है, एक टीचर अपने आप को भी जलाकर अपने बच्चों की लाइफ को उजाले से भर देता है. I know all of you are doing great efforts. कोरोना वॉरियर्स की बात होती है, उससे पता नहीं टीचर्स कहाँ छुप जाते हैं. क्योंकि ये टीचर्स उन कोरोना वॉरियर्स को तैयार कर रहे हैं जिनको आज आप कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हैं. हम फ्यूचर के शायद पता नहीं कौन कौन से वॉरियर तैयार कर रहे हैं.
So Sir, we are also teachers ने भी Corona बहुत warriors. lot of work Yes, that's done sir. by teachers in direct line of maybe teachers कितने हमारे they जी have जी बिल्कुल I do most agree. सबसे बड़ा लेकिन sacrifice किया है lot many teachers especially government बहुत schools and all. Right, yes right, sir. Yes, I can see that, sir. Please do not leave the session photograph के लिए. I request संजीव सर एंड आरपी सिंह सर टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स, और जो भी वो अपने कुछ आइडियाज इन लास्ट मिनट वो शेयर करना चाहते हैं. संजीव सर Yeah, एंड sure. सिंह सर, Am ओवर टू I यू. audible? यस सर, प्लीज. Yes, sir. Good evening, everyone. First of all, thank you very much, Rahul, Gupta sir, and Pankaj Chuk sir. Thank you, It sir. was a great learning with all of you. मुझे सिर्फ दो सेंटेंस में मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूँ. मेरी ओपिनियन हमेशा ये रही है, मैं किसी कंटेंट के डिटेल पे कोई बात नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत एग्जॉस्टिवली डिस्कस किए हैं सारे, वन टू द पॉइंट, के क्वेश्चन सॉल्व करना मैथमेटिक्स सीखना नहीं है. दूसरी बात ये है कि बिल्कुल क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करना है कि ये पेपर में आएगा तो ये पढ़ाएंगे, ये पेपर में नहीं आएगा नहीं पढ़ाएंगे. देखिए, हर एक स्कूल एक डिफरेंट स्कूल है, हर एक क्लासरूम एक बिल्कुल डिफरेंट क्लासरूम है. तो आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, अपनी टाइम लेंथ के हिसाब से, अपने क्लासरूम के, अपने बच्चों के लेवल के हिसाब से, आपके पास जो अवेलेबल टाइम है उसको देखते हुए आप जो डिलीटेड है उसमें से भी जितना ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम स्पेस अकोमोडेट करता है. Yes, sir. I think there is some network issue. yes. Okay. Yeah. संजीव सर, आर यू हियर? हाँ, मैं बिल्कुल जी यहाँ हूँ. जी बिल्कुल सर, प्लीज. But I was not prepared actually for saying vote of thanks. आप लोग जितना भी काम कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं बीच में पार्टिसिपेट इतना नहीं कर पाया था, बट द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम हैज अंडरटेकन, मेरे ख्याल से इन सिर्फ 3 लोगों को ही थैंक्स करना बनता नहीं है. इनफैक्ट पूरी टीम जो ज्वाइन कर पाई है और जो वेटिंग रूम में थी, और जो थैंक्स तो उन सब लोगों के लिए होगा अगर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वो सुन रहे इम्प्लीमेंट कर पाए. बहुत सारे आइडियाज होते हैं, शायद हम लोग एक ही लाइन से ना सोच रहे हूँ, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं, बट इस पूरी कैटेगरी में आज के सेशन में हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की है. वी हैव नॉट डिस्कस कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, और जो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों के लिए क्या अच्छा होगा. हम सिर्फ आज इसी साल का नहीं सोच रहे हैं, अगले साल का भी सोच रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यही बच्चे जो हैं अगले साल जाएंगे, और हमारे साथ साथ ये उनकी भी टेस्टिंग है एक्चुअली कि वो इस पीरियड में वो किस तरह से अपने आप को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि मैथ्स को कैसे सोच सकते हैं, उसके लिए तैयार कर सकते हैं. हमारा जो मेन एम है कि हम मैथमेटिक्स को एज अ थिंकिंग ओरिएंटेड लर्निंग सब्जेक्ट बनाएं, रोट सब्जेक्ट ना बनाएं. तो उस चीज से डेविएट ना होके हम सिर्फ ये सोचें कि हमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस उठाने हैं, और उसमें अगर हम सिलेबस से थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी कुछ उनको बता पाएं तो उसमें उनकी भलाई होगी. क्योंकि अल्टीमेटली हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि कोर्स कवर करना है, और वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आरपी सर ने बोला, तो सिर्फ ये सोच के पढ़ाएं कि हम कैसे उनको इन्वॉल्व करें ताकि वो मैथ्स के बारे में सोचें. सो सभी को नाम ना लेके मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, बिकॉज आई वाज आल्सो डाउन विद कोरोना फॉर सम टाइम, सो एक्टिवली उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था. तो शायद पहली दफा मैं यहाँ आया, बट मैंने सारे सेशंस अटेंड किए हैं और देखा भी है. पार्टिसिपेट नहीं कर पाया वो एक अलग बात है. होपफुली आगे फ्यूचर में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगा. और अमित सर तो टच में थे ही, और आज शायद उन्होंने वर्ड ऑफ थैंक्स कहने के लिए हमें इसलिए बोला भी कि वी शुड कम फॉरवर्ड, और नेग्लेक्टेड ना फील करें कि भाई बीमार थे तो ज्यादा नहीं कर पाए. तो डेफिनेटली अमित सर को तो थैंक्स करना बनता ही है, बिकॉज ही वाज द ओनली वन हु वाज इन टच विद मी. बाकी सब लोग तो ऑर्गेनाइज करने में बड़े लगे हुए थे. ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ. Thank you, Amit, and आज की त्रिमूर्ति, thank you, and all IM members, thank you. Thank you, sir. Thank One you, last sir. point, can I make, Amit sir? Yeah, please.
जो भी अभी, because first of all thanks to everyone and the participants are very important for us. तो मेरा ये है कि अगर participants को कोई particular query है regarding all this, they can mail you and then further we can consolidate it and these can be taken up and then whatever comes out from the higher authorities I can share with you. That can be done. So everyone is now requested to kindly switch on their cameras. हम screen capture करेंगे. Please a humble request everyone so that हम इसका screenshots ले पाएं. Yes, I can see Swati ma'am, Divya ma'am, Rashik sir, Madhulika ma'am. Okay, that's great. Everyone, please. Thank you very much. Rohit, are you taking the screenshots? Oh, मेरा ही कैमरा ऑफ है. एक सेकंड. Please wait for a minute. I'm sorry. Just stay only for 2 more minutes. Bharti ma'am, Kaushalya ma'am, nice to see Anita Agarwal ma'am. Rohit, please switch on. Okay, yeah, great. OP Gupta sir, please switch on your camera. Sir, actually, I cannot. The host has disabled it. Host has disabled. एक मिनट, कैसे होगा? I don't know. Yes. Start my video. Yeah. Rohit, Yes, possible है? Rohit, unmute yourself. Is it possible? हो गया. Oh, okay. Sorry. Yeah, please. अब सबके smiling face आ रहे हैं. We are capturing. अमित सर आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए क्योंकि आपका ऑन है और आप दिख नहीं रहे. तो कम से कम हाँ आप दिख रहे हैं. प्लीज. अब आ गया? Yes. आप दिख रहे हैं. ग्रेट. Okay. आइंस्टीन वाले बाल हैं अमित सर. Okay, next screen. So मैं कुछ नाम बोल लेता हूँ जो मुझे दिख रहे हैं. अलका मैम, शालू मैम, नितिन सर अगर कैमरा आपका ऑन है ये. महिमा अग्रवाल मैम. ओके ग्रेट. सविता मैम, रीटा उस मैम, रीटा चौहान मैम, रजनी मैम, राकेश सर. ओके, दैट्स ग्रेट टू सी एवरीवन. या रोहित आप भी प्लीज लेते रहो. मैं भी वैसे कोशिश कर रहा हूँ. Yeah, Roman ma'am, nice to see you. Okay, Rupesh Jha sir is also here. Nice to see you, sir. Ashok Jha sir, KK sir, Binod sir, great. Okay. Anis sir, okay. Yes, Neha ma'am. Thank you, Roman ma'am. Okay. Next screen. Okay, Rajiv Gupta sir, Aarti Agarwal ma'am, Meenu Chaudhary ma'am. Okay. अंकित जैन सर, दीपा लाल मैम, रेखा ग्रोवर मैम, ममता कत्याल. रेखा ग्रोवर मैम, शी इज फ्रॉम माय स्कूल CRPF रोहिणी. ओके, देन वी हैव तरंग मैम. कैमरा ऑन नहीं. अच्छा तरंग मैम, देयर इज सम टेक्निकल इशू आई नो. सुषमा मैम, आई कैन सी. परमेंद्र सिंह सर. Okay, that's great. Sorry Tarang ma'am. Okay, nice to see everyone. Everyone smile, always keep smiling. दिक्कत आई है, टाइम बुरा आया है. इट विल पास. विशाल मिनोचा सर, आई कैन सी यू नाउ. दीपक चौधरी सर, दीक्षा मैम. ओके, दैट्स ग्रेट. वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू. ये स्माइलिंग फेसेस आर मेकिंग द डे. आगे आने वाला टाइम सभी का शुभ हो, अच्छा रहे. सर कब तक स्माइल करना है बता देना सर. अब प्लीज आप सब